Uh, Hello and good evening to all of you. So, markets have been pretty much volatile these days, and therefore we thought of conducting kind of a webinar for all of you so that we can interact, we can have some discussions, and wherein you can reach us directly and you can discuss your concerns. And basically, we also thought of talking about like these tough times, like when markets are very volatile. So, how do you deal with them conditions, and what exactly are the right, so to say, the do's and the don'ts that maybe can kind of protect your portfolios and the right things basically that are required to be done during tough conditions. So that's what we intend to discuss today. So before I proceed any further, let me just give a brief introduction about myself. My name is Prasenjit Biswas, and I'm a part of the derivative research team, and I quantitative modeling as well. So I think you are able to see my screen. There should be PPT. Can you just confirm? Yeah, is it visible? Great. Right. So the first question is that how do we trade in tough times, or what exactly is supposed to be done during tough times? So the answer is that the best way to trade in tough times is actually to avoid getting into a tough situation in the first place itself. So there are certain things which, if we just understand at a very basic level, then maybe we can avoid getting trapped, if that is the word I have to use. Then we will discuss all of it. And at the end of the day, over the past 50-20 years of my experience in this market, what I have learned is that there is no foolproof method, or there is no holy grail which actually can foresee a black swan event or a Six Sigma event. But then it is the money management and the general discipline that you implement in your day-to-day life which keeps you safe. And of course, there are certain refined techniques which will allow you to do that, because there is a saying, why did you maintain the discipline? But how do you maintain the discipline? So that is always a question. So I think I'm just want to get a feedback from the audience itself, whether to keep the mode of communication Hindi or English, and I would prefer a mix of both, like Hindi and English. दोनों में हम बात करेंगे. Is that okay with everyone? If any of you from the audience can give me kind of a thumbs up, or any language preference. Right. So I will continue with English and Hindi both. And in case if you have any difficulty, you can always drop in a message, and we can always you know go back and discuss. So here we go. Basically, to start with, I will first discuss about the current market context. Like uh, in the recent times, we all know that because of the Russia and Ukraine conflict, the markets pretty much went into a high volatility regime, and there was a lot of ups and downs, and eventually we saw a market correcting from about 18,600 to the levels of 15,700, which is like a 15% correction. So the question is that whether this was pretty much in line, or whether this was something which was inevitable. And if you look at the past data, then maybe there are certain hints that we can get from historical study of the the information that is there already in the market, like the statistical data set, like how much markets can go up, and what is the likelihood when markets are likely to correct. Now मतलब कितना rally के बाद में correction हम expect कर सकते हैं. So historically, if we looked into that data without getting into the technical analysis itself, we just अगर हम खाली statistically एक बार data को अगर हम देखें, and if I ask you a question कि market 10% गिरने से पहले how much can it go up? So if my question is that if
markets were to correct 10%, but before that happening, how much markets can go up? So for example, if I just go back to the previous slide, you can see the zigzags on Nifty itself. You probably will be able to see the the lines connecting the lows and the highs. So those are the zigzags that I'm talking about. So they are like a 10% zigzag move. And so my question is that market 10% गिरने से पहले कितना बढ़ सकता है? So ये एक मेरे को interesting लगा, which I think all of us should know, and this is just a statistical data set. And so the answer to this question is that markets can actually go up on an average by 25%. So agar aap dekhe, all the blue colors at the bottom, the histogram that you are seeing on the bottom of the chart, they are the previous rallies that happened without a 10% correction. Like for example, if you look at the last bar, let me just show you. So this is the bar that I'm talking about, the last big one on the extreme right hand side. So that is like a 111% rally from the last time that markets corrected 10%. So the last time that markets corrected 10% was from 9900 to 8800 back in 2020 in the month of, I think, May. So between April and May, and the rally from the lows of 8800 from May 2020 straight away continued upwards up to the levels of 18,600 without any 10% correction. ऐसा नहीं कि बीच में correction नहीं आए, they have come, but none of the corrections were more than 10%. So this was really one of the, I would say, exceptional rallies that happened. And in a way, if we also looked at the previous such rally after the 2008 crash, which is where this is what I'm talking about, the one in the middle. Let me just point this out to you. So I'm talking about this particular bar here. So this is the one which is in 2009, and after this happened after the crash of 2008, and from there on markets recovered. But after that, this was like 85% rally straight away from 2200, I think. After that, this one is the largest rally so far. This is the biggest so far. So obviously, if you see that the low was made in April, and from there on, that was the last time that markets corrected from 7,500 lows. It went to 8,800, 9,900, and then it corrected back to 88. And then from 8,800, ये सीधा आपका market ऊपर चला गया. So if you just wanted to see this on the chart, I'll just show you. Just 1 minute. Yeah. So let me just open the chart for you. Yeah, I think you are able to see the chart on my screen. So if we look at this fall, like the one that happened in 2020 because of the COVID. So if you see, the markets actually made a high of this high at around 9,900. Let me just point this out for you. Sorry. Achha, okay. अभी आ रहा है, अभी दिख रहा है? Great. So जैसे ड्यूरिंग कोविड मार्केट ने ये वाला लो लगाया था. दिस वाज 7,500, 7,500. आप देख रहे हैं ये वाला. तो ये जो ग्रीन टिक है, यहां से लेके सीधा ये एक रैली था जो कि 9,900 तक मार्केट ने हाई लगाया था ऊपर में. सो यहां से मार्केट ने ये जो नेक्स्ट लेग का फॉल आया, दैट वाज ये लो. दिस इज द लास्ट टाइम दैट मार्केट्स मेड अ लो. सो ये लो आपका 8,800 के लेवल पे था. बट इसके बाद
जितने भी करेक्शंस आए हैं, आप बहुत सारे करेक्शंस आपको दिख रहे हैं बीच में, बट नन ऑफ देम हैव बीन मोर देन 10%। मतलब कोई भी जो फॉल आया इसके पहले, इसके बाद कोई भी एक ऐसा फॉल नहीं था जो 10% से बड़ा था। सो प्रैक्टिकली मार्केट ये 8,800 के लेवल से सीधा हम बोल सकते हैं कि सीधा मार्केट ऐसे बढ़ता गया। इवन ये जो बीच में पॉज आया था इन परसेंटेज टर्म्स, दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली 10%, स्लाइटली शॉर्ट ऑफ 10%। सो ये सीधा 10% का रैली यहां तक चलता रहा हमारे 8,600 के लेवल तक, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, दिस टॉप एंड बॉटम। तो इतने बड़ी रैली के बाद एक जाहिर सी बात है कि करेक्शन कभी भी आ सकता है, लेकिन द पॉइंट इज कि एवरेज तो 25% मार्केट का रैली चलता है, 25 से 30%। तो ये तो 110% चला गया, सो ये 150% भी जा सकता था इसका मतलब। सो वी कैन नॉट रियली पिन पॉइंट कि कब करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि एक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो हमको एक ब्रॉड गाइडलाइन दे कि ओके, मार्केट जनरली 25 से 30% का रैली आ सकता है बगैर 10% करेक्शन। दैट इज जस्ट अ पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। बट वेदर द करेक्शन विल एक्चुअली कम और नॉट, उसके लिए हमको दूसरे डेटा पॉइंट्स को भी देखनी चाहिए। ठीक है, सो एक और चीज हम इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए इतना बड़ा रैली आ भी गया, सो ये जाहिर सी बात है कि कभी भी जो करेक्शन आएगा, द क्वांटम ऑफ द फॉल कुड बी बिग। एंड मार्केट जब इतने बढ़ चुके होते हैं तो ऑब्वियसली जो मतलब डाउन साइड है वो काफी बड़ा ओपन कभी कभी हो सकता है। एंड इट डिपेंड्स एंड लाइक व्हाई द मार्केट्स विल कम डाउन, बिकॉज मार्केट अपना कारण ढूंढ लेता है। जैसे रशिया और यूक्रेन का देखिए कॉन्फ्लिक्ट आ गया, अभी प्राइसेस इससे रिएक्ट हुए क्योंकि उनको रिएक्ट करना था, राइट? क्योंकि मान लीजिए जिन्होंने 8,000, 8,500, 10,000 के लेवल पे अपने स्टॉक उठाए हैं, दे आर इन डीप प्रॉफिट, राइट? सो दे आर लाइक ऑलमोस्ट 60-70% प्रॉफिट पे है, 2 साल में काफी बड़ा प्रॉफिट है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर मार्केट में थोड़ा सा उनको लगता है कि थोड़ा सा रिस्क ऑफ मोड में जाना चाहिए, सो दे आर हैप्पी टू बुक दैट प्रॉफिट। इस वजह से आपका 10 से 15% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। सो ये था हमारे मतलब इफ यू आर टू टॉक अबाउट द अपसाइड रैली। अभी आपको वापस से मैं जस्ट गोइंग बैक टू द स्क्रीन। यस, सो यहां पे अगर आप देखें, सो बेसिकली अगर हम हाइस की बात करें, सो मार्केट में रैली तो 10% करेक्शन के पहले एवरेज में 25% का रैली आ सकता है। बट इन द क्वेश्चन इफ आई आस्क इज दैट उसके बाद फॉल कितना आता है, सो द आंसर इज एवरेज में 16%। दीज आर ऑल हिस्टोरिकल डेटा। सो अभी कभी अगर आप देखेंगे, है ना, सो दिस इज द एवरेज फॉल। ये जो ऊपर में आप जो हिस्टोग्राम्स देख रहे हैं ऑन द हायर साइड, है ना, सो दीज आर द रेस्पेक्टिव करेक्शंस दैट टुक प्लेस आफ्टर द रैली। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट टाइम मार्केट में अगर आप देखें, ये एक बड़ा करेक्शन था, ये दिस वाज लाइक अ 30% फॉल। सो ये वाला वही कोविड के टाइम पे था जहां पे मार्केट ने वो 12,300 का जो हाई था वहां से मार्केट स्टार्टेड टू करेक्ट एंड इट करेक्टेड टू 8,500। सो दिस वाज लाइक अ बिग करेक्शन एट वन गो। उसके बाद में एक रैली आया, फिर वापस से मार्केट गिरा था, बट एक सीक्वेंस में मार्केट 30% यहाँ पे जैसे रिसेंट टाइम्स में दिस वाज वन ऑफ द बिग कट्स। बट एवरेज, इफ यू लुक एट द एवरेज, सो ये जो रेड कलर का लाइन है दैट यू कैन सी, दिस इज द एवरेज लाइन। सो ये एवरेज हमारा एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर हम सोचे तो 16% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। नाउ विद दिस इन माइंड, जैसे कि मैंने कहा कि हाउ डू यू प्रेडिक्ट कि ये अब टॉप बनने वाला है, या ये यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड का प्रोपोजिशन इज नॉट ग्रेट, या यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा जो है डाउनसाइड ओपन हो रहा है, यहाँ पे हमको ट्रैप हो जाने का डर है, यहाँ से मार्केट यूटर्न मार सकता है। सो ये हम कैसे पकड़े? ये तो एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, ये जस्ट हमको दिमाग में रखना है। दिस ओनली टेल्स अस वेदर मार्केट्स आर इन अ फ्रॉथी जोन और नॉट। बट एक कहावत है, मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल यू नो मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। सो सिमिलरली मार्केट्स में ये रैली 110% का रैली, इट इज वन ऑफ द हिस्टोरिक द लॉन्गेस्ट रैली एवर। सो ये और भी बढ़ सकता था और करेक्शन और भी डिले हो सकते थे। बट हैविंग सेड दिस, हमको ये खाली मानना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट काफी ऊपर के लेवल पे है, तो हमको कॉशियस होते जाना चाहिए। जैसे एवरेज अगर 25-30% का है, अगर उसके ऊपर का रैली आ जाता है, तो माय अप्रोच विल बी अ बिट कॉशियस।
माय अप्रोच विल बी अ बिट कॉशियस, क्योंकि लेवरेज को हमको कंट्रोल में रखना है. Most of the people suffer losses not because of wrong decision making, but it is actually the money management which fails. Money management और ये जो position sizing है जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ये एक्चुअली बहुत क्रिटिकल होता है और इसके वजह से लोग प्रेशर में आ जाते हैं ओवर लेवरेजिंग की वजह से, और मार्जिन कॉल पे फिर इवेंचुअली हम वो पॉइंट पे पैनिक में आके बेचते हैं जहां पे एक्चुअली बाजार शायद बॉटम बना रहा. तो आगे अगर हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसके साथ, सो today's idea is basically to identify और एक probability के हिसाब से कहाँ पे एक टॉप या बॉटम बनने के चांसेस हैं उनको पकड़ना. So we are going to use or look at three types of parameters, you can say, and based on them we can identify when there is a weakness in the market or if markets are really strong. So पहला जैसे एक है कि मार्केट में हम ट्रेंड रिवर्सल्स ढूंढेंगे. सो व्हेन आई से लुकिंग एट ट्रेंड रिवर्सल्स, देयर आर मेनी टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड रिवर्सल. जैसे आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, बहुत जन फॉर एग्जांपल एलिट वेव यूज करते हैं. देयर आर मेनी टेक्निकल इंडिकेटर्स, बट आउट ऑफ व्हिच आई विल ओनली डिस्कस अबाउट अ वेरी सिंपल इंडिकेटर और अ टेक्निक व्हिच इज बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइंस. सिंपल. सो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे मैं पर्सनली ट्रेंड लाइंस को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं. ठीक है, अगर आप मूविंग एवरेज की बात करें तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट यू हैव टू नो दैट द मूविंग एवरेज दैट यू आर यूजिंग इज एक्चुअली यू आर एबल टू यूज इट, यू नो हाउ इट वर्क्स. ठीक है, और अगर हम मूविंग एवरेज से थोड़ा हट जाए, माय प्रेफरेंस वुड बी टू लुक एट ट्रेंड लाइंस. सो द अदर थिंग इज दैट इसके साथ हम एक यूज करेंगे एक ऑसिलेटर, जो कि हमको मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है ये थोड़ा सा एक एस्टिमेट दे देगा. सो वी आर गोइंग टू यूज RSI, एंड इससे हमको मार्केट में एग्जॉशन आ रही है कि नहीं आ रही है, वेदर ऑन द अपसाइड और डाउनसाइड, ये हमको थोड़ा सा हेल्प करता है टू गेज वेदर मार्केट्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड और नॉट. एंड तीसरा इसके साथ में जो हम देखेंगे वो है ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ. सो ब्रेथ शायद आप में से बहुत जन जानते होंगे, बट मैं आज अपना भी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इसमें शेयर करूंगा, बिकॉज दैट्स माय कोर वर्क ऑफ एरिया like that I have done in terms of the anything new done on technical analysis. So it is a very powerful tool if you understand how to use it. It is a clear reflection of the sentiment in the market. So the first thing to start is to identify trend reversals, and there are like many ways, as I said, कि आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, आप एलिट वेव यूज कर सकते हैं, कई लोग कैंडल स्टिक यूज करते हैं. देयर आर अदर वेरियस टेक्निक्स, you can even use mathematical models also, but जैसे कि मैंने कहा, today we will discuss about trend lines. And so here we go. So basically एक ट्रेंड लाइन क्या है? Essentially एक ट्रेंड लाइन को आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि it is a line which gives me an idea about the direction of the trend. That is number one. Dusra, it also tells me whether the trend is likely to reverse or not, or what is the point below which or above which the trend will reverse. So ये हमको एक बेसिक क्लियर कट एक ऑब्जेक्टिव तरीके से ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड चेंजेस के जो पॉइंट्स हैं, जो लेवल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम कहते हैं या जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस हम कहते हैं, उनको हमको बहुत इजीली ये हमको दे देता है. मैं मूविंग एवरेज का उतना बड़ा फैन नहीं हूं पर्सनली. द रीजन इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट मूविंग एवरेज, आप मेरे से पूछेंगे सर आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज करते हो, तो मैं बोलूंगा कौन सा मूविंग एवरेज यूज करते हैं, इट इज अ $1 million क्वेश्चन. क्योंकि कारण ये है कि आप अगर 200 यूज करते हैं या 50 यूज करते हैं, तो मैं पूछूंगा 50 कौन सा, एक्सपोनेंशियल या सिंपल, राइट? डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे 50 क्यों, 20 क्यों नहीं, 20 क्यों, 55 क्यों नहीं, है ना? So there are many combinations of moving averages that can be used. The point is that कोई भी मूविंग एवरेज एक्चुअली उस तरीके से सोचना ही गलत है कि एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज है जो हमेशा होल्ड करता है. नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मूविंग एवरेज वही काम करता है जो एक्चुअली मार्केट का साइकिल है. तो साइकिल्स के बारे में आज हम शायद डिस्कस नहीं करेंगे, बट इन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में जो साइकिल चलता है, जैसे हाई और लो का जो ऐसे एक कर्व चलता रहता है, वो जो साइकिल है उसका हाफ पीरियड इज द आइडियल मूविंग एवरेज. बट वो साइकिल चेंज होते रहते हैं,
राइट। कभी आपके लोज निफ्टी में 50 दिन बाद बनेंगे, कभी देखिएगा कि वोलेटिलिटी बढ़ गई तो 20 दिन बाद हो रहे हैं। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाइज एंड द लोज और द साइकिल पीरियड कीप्स ऑन चेंजिंग एंड देयरफॉर नो सिंगल मूविंग एवरेज कैन गिव मी द राइट आंसर कि अभी ये आप मूविंग एवरेज अगले 5 साल के लिए यूज करो, आपको पैसा दे देगा। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेंड लाइंस देयर इज नो सब्जेक्टिविटी। तो इसके लिए आई एम अ बिग फैन ऑफ ट्रेंड लाइंस, क्योंकि ट्रेंड लाइंस में ये बहुत क्लियर कट कि ट्रेंड लाइंस ये कहता है कि टू डिफाइन एन अप ट्रेंड यू बेसिकली कनेक्ट द लोज एंड वो आपको जो लाइन आपको मिल रहा है दैट विल गिव यू द लेवल अबव विच द ट्रेंड इज सपोज टू बी इन अप ट्रेंड, या हम उसको अप ट्रेंडिंग स्टॉक या इंडेक्स मान सकते हैं। सो अगर आप अपनी स्क्रीन की तरफ इफ यू सी दिस ऑन द लेफ्ट साइड where there is a sequence of higher highs and higher lows. तो एक uptrend का definition क्या होता है? By definition एक uptrend is nothing but a sequence of higher highs and higher lows. So for example, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, so it is actually एक low बना यहाँ पे and then it went up, came down, went up again, वापस से नीचे आया। लेकिन खास बात ये है कि ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ना, इसमें आप अगर एक नोटिस करेंगे, what is important is that every time it came down, या इसने हमेशा जो है ना प्रीवियस लो के ऊपर का ही एक लो लगाया है। सो इन एन अपट्रेंड द हॉलमार्क ऑफ एन अपट्रेंड इज दैट देयर विल बी अ सीक्वेंस ऑफ हायर लोज। तो एक हायर लो जब तक बनते जा रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि जो क्लाइंब है दैट इज ऊपर की तरफ, मतलब अपट्रेंड इंटैक्ट है। नाउ ये जो हाइज लग रहे हैं इनका हम क्या करें? ये जो पर्टिकुलर हाइज है क्या हम इनको भी एक लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इनका इफ यू आस्क मी आई विल से दैट दे डोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज ये एक अपट्रेंड को डिफाइन करने का जो मेन तरीका है वो आपका सिंपल है, आप खाली लो को ही देखना है, राइट। सिमिलरली एक इन केस ऑफ अ डाउन ट्रेंड हम क्या करेंगे? हम इसका बस उल्टा करेंगे। तो अ डाउन ट्रेंड इज अ सीक्वेंस ऑफ लोअर हाइज, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है a sequence of lower highs and uptrend a sequence of higher lows. So इस वजह से जब हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो वी कनेक्ट ओनली द पुल बैक रैलीज। तो जैसे ये एक पुल बैक रैली आता है आप नोटिस कीजिए कि इट इज ऑलवेज लोअर देन द प्रीवियस हाई। ये कभी भी एक ऐसा रैली नहीं आएगा जो कि प्रीवियस, ये जैसे गिर रहा है स्टॉक, तो एक रैली आया अगेन इट गोज डाउन, बट ये जो पुल बैक रैली आ रहा है ना, इट is not supposed to cross this previous high, है ना। तो ये कहीं से भी गिर सकता है, ये यहां से हाई लगा के हो सकता है कि यहां से गिर जाए, बट ये जो ऊपर का एक लाइन लगा है दैट लाइन इट विल नॉट क्रॉस। सिमिलरली अभी ये नीचे शिफ्ट हो गया, सो अगेन जब यहां से एक रैली आ रहा है, मान लीजिए ये एक ऐसे रैली आ रहा है, सो बट अगेन इट इज नॉट सपोज टू क्रॉस द प्रीवियस हाई। सो ऐसे करके ये एक सीक्वेंस ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते जाता है, बट इसमें हम जो हाइज है उनको ही नोटिस करेंगे। अब इसमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है? बहुत सिंपल, आपको जो हाइज जो बनते जा रहे हैं एक के बाद एक, राइट, सो उसमें आपको जो है ना, इनको अगर आप कनेक्ट कर दें, इफ यू कनेक्ट दीज हाइज एंड यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका जो है ना, यही आपका बन गया ट्रेंड लाइन। सो दिस इज व्हाट यू कैन से दैट दिस इज ओके, दिस इज माय ट्रेंड लाइन एंड ये मेरा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि अगर जैसे आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक है अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वो एक कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके रुक जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं एक सिमेट्री भी है। सिमेट्री इन द सेंस आप अगर देखें तो ये जो सीक्वेंस है ये अपरेंटली एक रेजिस्टेंस पे जाके रुक रहा है, जो कि एक इनविजिबल सा लाइन है। अगर हम ये वाला ग्राफ को अगर आप नोटिस करें, ये यहाँ पे जैसे देखिए ये जो रेड कलर का पूरा लाइन है, इट इज एन इनविजिबल लाइन। ये एक्चुअली मतलब ऐसे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये अगर आप जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो मार्केट का गिरने का जो पेस है वो एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड एक पेस के थ्रू गिर रहा है। अब इसमें ट्विस्ट यहां पे आ जाता है कि इनकेस अगर ये जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन है, अगर हम अपट्रेंड की बात करें, मैं जस्ट चेंज द कलर, जैसे अगर हम अपट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारा सपोर्ट लाइन है, दिस ग्रीन कलर्ड लाइन, जो कि हमने लोज को कनेक्ट करके हमने ये सपोर्ट लाइन बना के रखा हुआ है, राइट। सो आगे चल के अगर मान लीजिए ये जो स्टॉक है हमारा,
if after making a high at this point, let's say ये और ऊपर जाता है, and from there if it goes down and fails to hold this green colored line, ये वाला point, so that is where I would say कि ट्रेंड जो है वो अंडर क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज इसके पहले दिस स्टॉक और जो भी हम इंस्ट्रूमेंट को स्टडी कर रहे हैं, इट वाज परफेक्टली हेल्ड और दिस ग्रीन कलर ट्रेंड लाइन परफेक्टली रेस्पेक्टेड द प्राइस मूव, है ना। तो प्राइस मूव जो ग्रीन लाइन था उसको पकड़ के चल रहा था, बट अभी यदि अगर कुछ इफ देयर इज एन एनोमली, है ना, सो if in case this support line, this green line, I would say that this is a support line, so ये अगर support line हमारा अगर टूट रहा है, so this is where I would say there is a possible trend reversal. so यहाँ पे हो सकता है कि मेरा जो बाय मोड चल रहा था, ये पॉइंट पे सपोर्ट टूटने के बाद ये जो है ना स्टॉक वीक हो गया है या आगे चल के वीक हो जाएगा। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये स्टॉक वापस से जो है ना डाउन ट्रेंड के सीक्वेंस में आ जाएगा एंड इट विल जस्ट फॉलो द जर्नी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑल्टरनेट ये है कि ये स्टॉक हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेशन में चला जाए, साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाए। सो आइदर ऑफ द टू पॉसिबल थिंग्स आर लाइकली टू हैपन। जो तीसरा एंगल है कि ये सपोर्ट टूटने के बाद क्या बाउंस आ सकता है, आ सकता है, वो हम मना नहीं करेंगे, बट दैट इज अ लेस लाइकली सिचुएशन। तो जो मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन वही यही है कि आइदर द स्टॉक गोज डाउन और द स्टॉक बिकम्स साइडवेज। ये दो ही जो पॉसिबिलिटीज हैं, दे आर द मेन मोस्ट लाइकली आउटकम्स। एंड इसमें अगर आप पूछे तो हमको करना क्या है, सिंपल। अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन चल रही है तो ऑब्वियसली मेरे को अपने लॉन्ग पोजीशन को इस ब्रेकडाउन पॉइंट पे रिड्यूस करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, या अगर मेरे को लगता है कि आई कैन क्लोज द पोजीशन, आई शुड एग्जिट। टिपिकली जो मोमेंटम ट्रेडर्स है वो यहाँ पे उल्टा शॉर्ट कर देते हैं। सो वंस द सपोर्ट इज ब्रोकन दे गो शॉर्ट, दे गो सेल, है ना। तो ये आपका सेलिंग पॉइंट हो जाता है शॉर्ट साइड में, क्योंकि आपका सपोर्ट टूटा है। इसके पहले जितने बार भी ये जो स्टॉक था हर बार आपका सपोर्ट होल्ड कर रहा था, तो इस बार भी बहुत जन ने ये सपोर्ट को देख के लॉन्ग किया होगा। लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट अगर टूट जाए ना, so all of these people who are long, they all will come and book profits और stop loss में उनका जो है पोजीशन कटना चालू होगा। so that will create a selling pressure, right? so इस तरीके से जो सपोर्ट अगर इस टाइप का ब्रेकडाउन हो जाए तो कई बार आप देखिएगा कि बहुत क्विक मूव आ जाता है, कभी कभी तो गैप डाउन में सीधा खुल जाता है, राइट। अगर हम अप ट्रेंड की बात करें, सो अप ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड में रिवर्सल आने का अगर है, सो ये राइट साइड का आपको देखना होगा। सो आफ्टर मेकिंग अ लो, इफ दिस रेड कलर लाइन इज ब्रोकन ऊपर की तरफ, सो यहां से मान लीजिए आपका एक पुल बैक रैली आना चालू हो जाता है, एंड दिस एक्चुअली आफ्टर मेकिंग दिस लो द स्टॉक गोज अप, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग दिस रेजिस्टेंस इट गोज अप, इट ब्रेक्स आउट। सो इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक में, और जो है नाउ द स्टॉक इज लाइकली टू रिवर्स द ट्रेंड। अभी ये डाउन ट्रेंड में जो चल रहा था ये अभी अप ट्रेंड में आ गया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि मैंने एक वर्ड यूज किया, ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि देयर वाज अ रेजिस्टेंस और वो रेजिस्टेंस आपका टूट गया, द प्राइसेस हैव क्रॉस दैट बैरियर, है ना। सपोर्ट अगर टूट जाए तो उसको हम ब्रेकडाउन जनरली बोलेंगे। एक रेजिस्टेंस लाइन टूट जाए, जैसे यहाँ पे मैं हम देख सकते हैं, सो दिस इज वेयर इज द ब्रेकआउट पॉइंट। ये वाला पॉइंट हमारा एक ब्रेकआउट पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे हम जो है हम यहाँ पे लॉन्ग भी इनिशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज माय बाइंग पॉइंट, है ना, बिकॉज दिस इज वेयर इफ द स्टॉक वाज इन डाउन ट्रेंड देन दिस शुड हैव कंटिन्यूड, यू नो। ये फिर ये ब्रेकआउट यहाँ से नहीं आना चाहिए था, बट अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट अगर मेरा आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो सेलर्स थे वो they are absent in the market or they are less dominant, they have not been able to kind of hold the stock down, or in comparison to the sellers there are more number of buyers behind that stock, and which is why the resistance was absorbed by the buying that was coming in. जो supply है resistance पे वो cross हो गया buying thrust की वजह से, है ना। so यहाँ पे भी कैसे हो सकता है कि ये stock एक breakout देने के बाद में it can just continue with the next leg of the
अपवर्ड रैली। अभी यहाँ पे एक बात मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से जैसे थोड़ा सुने, वो ये है कि कई बार लोग बोलते हैं कि अरे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया। तो ब्रेकआउट में जैसे कई बार लोग ये गलती कर बैठते हैं कि मान लीजिए एक स्टॉक ऑलरेडी एक अपट्रेंड में है, तो कई बार बोलते हैं कि अरे ये प्रीवियस हाई टूट गया, सो दिस इज द प्रीवियस हाई। सो जैसे ही ये वाला हाई टूटता है, लोग बोलते हैं अरे अरे ये ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया। नो, इट इज नॉट अ ब्रेकआउट, ये कभी ब्रेकआउट नहीं होगा। सो हमेशा एक ब्रेकआउट तभी होगा जब आपका जो रेजिस्टेंस लाइन था दैट वाज डाउन स्लोपिंग, या एटलीस्ट इट वाज अ फ्लैट लाइन। सो फ्लैट लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स। अगर हम यहाँ पे लास्ट 2 पॉइंट को अगर हम देखें, सो इट विल बी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो दिस रेजिस्टेंस लाइन और द टारगेट लाइन इज एक्चुअली अपवर्ड क्लाइंबिंग, है ना। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। सो इफ आई एम कनेक्टिंग दिस हाई एंड द नेक्स्ट हाई, सो आई एम गेटिंग दिस अपवर्ड राइजिंग लाइन। सो ये ब्रेक अगर करता है, प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, तो इट डजंट मीन एनीथिंग। इट्स लाइक आपका बाई साइड में चल रहे थे, आपका पहला टारगेट अचीव हो गया। सो पहला टारगेट अगर अचीव हो जाए तो आप सेकंड टारगेट के लिए ऑब्वियसली पोजीशन रख सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पहला टारगेट अचीव हुआ तो आप वापस से बाई कर लें, राइट। सो पहला, दूसरा, तीसरा बहुत सारे टारगेट हो सकते हैं, बट व्हेन द स्टॉक इज ऑलरेडी इन एन अपट्रेंड, तो उसमें फ्रेश ब्रेकआउट का कोई सवाल नहीं आता है ना। सो द ब्रेकआउट वर्ड इज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर वाज अ टाइट कंजेशन और द स्टॉक वाज इन डाउन ट्रेंड। जैसे टाइट कंजेशन की अगर बात करें तो मे बी यू कैन इमेजिन लाइक इफ द स्टॉक वाज गोइंग साइडवेज। अगर मान लीजिए एक ऐसा साइडवेज सिचुएशन था, फॉर एग्जांपल ये एक स्टॉक ऐसे बढ़ रहा था एंड देन यू नो इट काइंड ऑफ स्टार्टेड टू मूव इन अ रेंज। तो यहाँ पे बिल्कुल हम बेशक ये बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे अगर ये ऊपर का लाइन अगर इफ इट इज क्रॉसिंग, सो डेफिनेटली देयर इज रेंज ब्रेकआउट एंड वो केस में फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, इसमें देयर इज अ ब्रेकआउट। ये दिस वाज अ कंजेशन, दिस इज अ टिपिकल कंजेशन रेंज, और ये फिर एक रेंज के बाद में वापस से जो नया लेग चालू हुआ है, सो देयर इज अ ब्रेकआउट। बट not like if the stock was in a perfect climbing uptrend and it was simply going up and इस तरीके से ऊपर जा ही रहा था, तो हम कभी भी ये वाला कोई भी एक हाई क्रॉस करने से हम उसको नहीं बोलेंगे कि नहीं 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 ये वापस से इट इज अ फ्रेश बाय। नो, इट इज नॉट अ फ्रेश बाय, है ना। सो बेसिकली इन दिस केस द बाय would be at these support areas. You would want to buy when the stock corrects near the support level. So I hope this is clear. So understanding this trend identification using these trend lines is very important, I would say, because they can help you in understanding not only a particular stock, but it also gives you an idea about the whole, the market as a whole. मतलब overall market में अगर आप ऐसे बहुत सारे breakdowns देख रहे हैं, if you are able to see that lot of stocks are actually below the support or near the support, and there is a possibility कि अगर ये सपोर्ट टूट जाए तो एक साथ बहुत सारे स्टॉक में ब्रेकडाउन आ जाएंगे। सो वैसे सिचुएशन में मार्केट कभी भी आपका खड़ा नहीं रह सकता है। सो फॉर एग्जांपल आई विल शो यू इन द रिसेंट टाइम्स बिफोर दिस द फॉल गॉट ट्रिगर्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी, अराउंड मिड फरवरी देयर वर लॉट ऑफ स्टॉक्स जो कि अपने सपोर्ट के पास थे, और वो सपोर्ट जैसे ही उसमें टूटा, सो एवरीथिंग ऑब्वियसली कोलैप्स टुगेदर वेरी क्विकली। ऑब्वियसली एक न्यूज तो चाहिए, एंड द ट्रिगर वाज द war between Russia and Ukraine, but then market was also ready to give up, है ना। So इस तरीके से हम कभी-कभी जो है एक सिंपल टूल को भी काफी इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कमिंग फॉर। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि इफ द स्टॉक हैज ऑलरेडी ब्रोकन द सपोर्ट लाइन, so that means that I got to come out of the stock. मैं कभी भी एक एक ऐसे स्टॉक को मैं पकड़ के आइडियली मेरे को नहीं रखना चाहिए जो एक सपोर्ट लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा है, या मैंने जब लिया था तो सपोर्ट के ऊपर था, अभी नाउ द सपोर्ट हैज ब्रोकन। सो इसके लिए क्या है कि जैसे ही आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं, पहला आपको ये देखना चाहिए कि वेयर इज द सपोर्ट अबव व्हिच आई विल अज्यूम दैट द स्टॉक इज इन अपट्रेंड, राइट। तो पहला तो अजम्पशन यही है कि द स्टॉक इज इन अपट्रेंड। सेकंड, हमको ये फाइंड आउट करना है कि कब तक अपट्रेंड में रहेगा, व्हाट इज द पॉइंट बिलो व्हिच आई विल से कि आई डोंट नो ये अपट्रेंड में है या नहीं है ना। सो दैट पॉइंट हैज टू बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, एंड depending on that,
फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि वो पॉइंट कितना दूर है मेरे बाइंग प्राइस से। तो इन केस इफ आई हैव टू टेक अ स्टॉप लॉस, अगर मेरे को पोजीशन काटनी पड़े तो वो कितना डीप मेरे को लॉस आएगा, कितना परसेंट नीचे है, उसके हिसाब से आई विल डिसाइड अपॉन द साइज ऑफ द वॉल्यूम दैट आई वांट टू डू। सो इट्स लाइक अ चक्रव्यूह, जहां पे आपको घुसने से पहले निकलने का रास्ता मालूम होना चाहिए, है ना। सो जस्ट शो यू एन एग्जांपल, it is a chart of Tata Motors from long back. This was in pretty much in 2014-15 era, when this stock was actually going into a smooth uptrend. ये देखिए यहाँ पे जैसे you can clearly see that the uptrend in the stock was very clearly defined, है ना, using the lower highs, the sequence of the higher lows, the sequence of higher lows. जैसे ये stock uptrend में चल रहा था यहाँ से, so it made a low, then it went up gradually, then again it corrected, so again this was a corrective low, again it went up, came down a bit, but then again it came down. So by the time I get these 2 points, I am able to draw a support trend line. अब देखिए ये तीसरी बार भी जो है ना, ये यहाँ पे perfectly इस trend line पे इसने support लिया, and उसके बाद obviously it went to 600. और फिर then again as usual it just started to come down, and again it took a support at the precisely defined support area. But इस बार क्या है, इस बार ये stock instead of going up further, it actually did not go up higher, instead it took a U-turn, है ना, and eventually this was the point where the stock actually gave a breakdown. So this was somewhere around 500-520 levels, है ना. So if I had idea about this particular breakdown, so the chances are that I would not be holding the stock anymore. मैं हो सकता है कि मैंने कहीं पे भी initiate किया होगा, I probably would have bought the stock at 200, or maybe I would have bought the stock at 500. But the point is कि अगर मैंने यहाँ पे ये पोजीशन काट दी होती तो उसके बाद में आपको मालूम है टाटा मोटर कितना नीचे आया है ना. So ये तो straight away आप यहीं पे देख सकते हैं कि straight away came down vertically to 250 odd levels. So just these simple tools can save you from lot of big losses. And trading में या investment में हम ये मतलब जानते हैं कि every penny saved is a penny gained. तो अगर मैंने एक बड़ा सा लॉस बचा लिया, अगर मैंने अपनी पोजीशन को फंसने से बचा लिया, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. सो पोजीशन लेना मेरे हाथ में है, और आप फिर बोल सकते हैं कि मार्केट उसके बाद में हमको डिक्टेट करेगा कि व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू. आई हैव टू डांस अकॉर्डिंग टू द ट्यून दैट द मार्केट प्लेज, है ना. पोजीशन एक बार लेने के बाद में मार्केट आपको जैसे इशारा करेगा नाचने के लिए, हमको वैसे रिएक्ट करना है. अगर मार्केट बोलता है कि भाई स्टॉक से निकल जाना चाहिए तो निकल जाना चाहिए, है ना. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज कि हम उसमें फंस जाएंगे, जो हम बोलते हैं कि ट्रैप हो गए. तो ट्रैप एक्चुअली होना टोटली हमारे हाथ में है. हम चाहें और पूरा प्लानिंग अगर पहले से अगर हमारा हो पोजीशन लेने से पहले कि भाई व्हाट इज द एग्जिट पॉइंट, तो हम कैसे ट्रैप हो सकते हैं. हो सकता है कि स्टॉक मेरे फेवर में नहीं गया, वो मेरे हाथ में नहीं है, बट फंसना या नहीं फंसना वो टोटली मेरे हाथ में, राइट. So let's just move on to some more indicators. So this was about trend lines, and along with all this we can also use lot of indicators. So there are a lot of indicators also which can help us in identifying any trend reversal or anything about a market. So out of all the indicators, basically हम क्या है ना, सारे indicators को हम ये broadly 4 categories में divide कर सकते हैं. So one is a price based indicator, जिसमें आपके सारे moving averages, मतलब ऑसिलेटर्स, आरएसआई, स्टोकास्टिक या जो भी आप एमएसीडी बोल लीजिए, एमएसीडी हिस्टोग्राम बोल लीजिए, एवरी इंडिकेटर व्हिच इज बेस्ड ऑन प्राइस दे कम अंडर दैट हेडर. सेकंड कैटेगरी के जो इंडिकेटर्स होते हैं दे आर ऑल वॉल्यूम बेस्ड, जहां पे वॉल्यूम विद और विदाउट प्राइस एज एन इनपुट, वॉल्यूम इज एन इंपॉर्टेंट और द कोर व्हाट यू से द पैरामीटर दैट वी आर स्टडीइंग, है ना. सो वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं. इसके अलावा और भी जो 2 कैटेगरी के इंडिकेटर्स होते हैं व्हिच आर वेरी लेस टॉक्ड अबाउट, एंड इन माय ओपिनियन दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दे एटलीस्ट हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस, एंड दैट इज द ब्रेथ इंडिकेटर, द होल बंच ऑफ ब्रेथ इंडिकेटर्स, एंड द मार्केट सेंटिमेंट. सो मार्केट सेंटिमेंट और ब्रेथ एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि दे आर वेरी इंटरकनेक्टेड,
and using certain techniques to understand breadth, market internals को अगर हम अच्छे से study करें, so we can understand the psychology of the people who are involved in the market. Market participants जो हैं, हम उनके psychology को भी समझ सकते हैं अगर हम ये position को अच्छे से समझ लें कि overall stock में क्या चल रहा है, overall what is the experience that people are having, right? अगर for example अगर आप देखते हैं कि in almost every stock there is a situation like the टाटा मोटर जो हमने ये प्रीवियस स्लाइड में देखा, जैसे यहाँ पे एवरीथिंग वाज लाइक, आप देखते हैं कि ब्रेकडाउन बहुत सारे स्टॉक में ऐसे आ रहे हैं, एवरीथिंग इज लाइक ब्रेकिंग डाउन. सो द इन्फरेंस दैट वी कैन ड्रॉ इज, इसका मतलब यही है कि सारे जो स्टॉक है ना अभी वीक हो रहे हैं, एक साथ सारे स्टॉक वीक हो रहे हैं. सो देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट मार्केट एक्चुअली बहुत वीक है. भले निफ्टी में आपको कुछ भी दिखे, क्योंकि निफ्टी में प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी इज अ मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स, जो कि हमेशा आप बोल सकते हैं कि इट इज क्यूड बाय दी हेवी वेट्स लाइक द रिलायंस और द एचडीएफसीज इन टुडेज डेट. सो द रेस्ट ऑफ द मार्केट इज एक्चुअली not going to impact much on the Nifty's reading. So unless and until I'm trading Nifty futures, if I'm trying to understand what is going on in the market and if I'm trying to trade stocks, so आप Nifty जरूर देखिए, but Nifty के बाहर आपको जो सबसे पहले देखना चाहिए वो है मार्केट इंटरनल्स. और मार्केट इंटरनल्स स्टडी करने का मेरा तरीका बहुत सिंपल है. मैं पूरा 200 जो स्टॉक है, जो लिक्विड बास्केट है, भले 200 नहीं भी है तो आप एफएनओ के जितने भी 160-70 जो स्टॉक्स हैं उनको आप स्टडी कीजिए. उनमें देखिए कि आर यू एबल टू फाइंड एनी पर्टिकुलर बायसनेस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. लाइक क्या आपको बहुत सारे स्टॉक में ब्रेकआउट दिख रहा है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी सारे स्टॉक जो है ना काफी पिट चुके हैं, देयर इज अ मैसिव सेलिंग दैट हैज हैपेंड एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर लाइक ओवरसोल्ड. सो इस तरीके से निफ्टी में हो सकता है कि वो रीडिंग आपको बाद में दिखाए, है ना. सो अगर आप इंटरनल को स्टडी करेंगे, इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक, बिकॉज ये इसलिए मतलब बिहेव करते हैं इस तरीके से. द रीजन इज कि जब हम जनरली स्टॉक खरीदते हैं, सो हम मार्केट वेट या मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख के नहीं खरीदते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं and if I'm bullish on the market, then it is not that I will buy 13% Reliance because Reliance has a 13% weightage and I will buy only 0.5% ONGC because ONGC has a 0.5% weightage. ऐसा नहीं होता ना. So हम अगर 10 लाख रुपए अगर हमने डिसाइड किया कि हम 20 स्टॉक खरीदेंगे तो we'll probably deploy more or less an equal amount of money. So हम हर एक में 50,000 रुपए करके डाल देंगे, ऐसे कुछ करेंगे. So the deployment is always more or less systematic in nature in our mind, but at least it is not based on the market capitalization technique, है ना. तो इस वजह से क्या है कि अगर मेरे पास में मान लीजिए 5 लाख 10 लाख रुपए था, तो उसमें हो सकता है कि मैंने रिलायंस में भी पैसा लगाया, उसमें हो सकता है कि मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी पैसा लगाया, मैंने सारे मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप में मिक्स करके सारे में पैसे लगाए हैं. अब जब लॉस होगा, सो चाहे रिलायंस के लिए लॉस हो या रिलायंस इंफ्रा के लिए लॉस हो, लॉस तो लॉस है. सो द पेन इज सेम. सो आई विल नॉट से कि नहीं ये तो रिलायंस का लॉस है, मतलब इसमें 10,000 रुपए जा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को बड़ा प्रॉब्लम है अगर ये लेट्स से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में लॉस हो रहा है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. द लॉस इज ऑलवेज गिव्स अस द सेम काइंड ऑफ पेन. सो इस वजह से क्या है कि अगर मेरे स्टॉक फंस रहे हैं, सो ओवरऑल अगर होलिस्टिकली मैं देख रहा हूँ कि सारे स्टॉक एक एक करके फंस रहे हैं, सो द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट दे आर गोइंग टू कम अंडर स्ट्रेस. इसका मतलब ये है कि अभी जो पोजीशंस बने हुए हैं, people are going to manage those positions rather than adding any further position. और अगर मार्केट में रिवाइवल नहीं आती है तो यही पोजीशन आगे चल के कटने वाले हैं and that will create a selling pressure going ahead in the market, right? So breadth इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ब्रेथ को स्टडी करने के लिए जस्ट गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दिस ओनली. सो बेसिकली we start with an oscillator. So price means I will take trend lines and I will also use RSI as an oscillator to understand if markets are also like overbought and oversold. So generally जो नहीं जानते हैं, मतलब जो नए हैं टेक्निकल एनालिसिस के फील्ड में, उनके जानकारी के लिए बेसिकली RSI का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ये इंडिकेटर जस्ट लाइक एन ऑसिलेटर एक हमको मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का एक अंदाजा देता है. सो ओवरबॉट का मतलब ये है कि मार्केट में जब जो है ना, मतलब
थोड़ा सा इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो बाइंग है कंपेयर टू सेलिंग बहुत ज्यादा हुई है. सो मार्केट्स आर स्लाइटली लाइक ओवररेटेड, हम बोल सकते हैं इस तरीके से. ओवरसोल्ड का मतलब इसका उल्टा है, जहां पे मार्केट्स इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम हैव सीन अ लॉट ऑफ सेलिंग. तो हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा ही बिक गया है, एंड मे बी द मार्केट्स आर लाइकली टू बाउंस. बट जब भी हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड की बात करते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मार्केट कैन रिमेन ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो खाली ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखने से नहीं होता है ना. सो आरएसआई को थोड़ा सा हम डबल एज सोर्ड भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों तरफ है तलवार का धार, जिसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है अगर हमको यूज हम ठीक तरीके से नहीं किए तो, राइट. सो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्चुअली आरएसआई है क्या, सिंपल आप ऐसा सोचिए, गेन वर्सेस लॉसेस का रेशियो. एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना ओवरऑल एक स्टॉक बढ़ा है और गिरा है, उनका एक रेशियो है, बस इतना ही है. सो ये रीडिंग 100 और 0 के बीच में ऑसिलेट करता है. 50 इज द न्यूट्रल जोन. जनरली जो कन्वेंशन है वो ये है कि 14 पीरियड आरएसआई लिया जाता है, मतलब एक स्टडी करने के लिए प्राइसेस को 14 डे का एक विंडो लिया जाता है, और उसमें अगर ये गेन लॉस रेशियो अगर 70 के ऊपर आ जाए तो उसको जनरली हम फिर ओवरबॉट मानते हैं, और वही अगर ये रीडिंग 30 के नीचे अगर आ जाए तो उसको हम जो है ओवरसोल्ड मानते हैं. सो ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है कि जहां पे स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा सेलिंग फेस कर रहा है या फेस कर चुका है. ओवरबॉट का मतलब जहां पे स्टॉक में काफी ज्यादा बाइंग हो गई है और अब प्रॉफिट बुकिंग भी आने का चांस है, राइट. सो जनरल मार्केट में कन्वेंशन यही 14 पीरियड यूज करने का है एंड 70-30 कट ऑफ पीरियड यूज किए जाते हैं. बट मैं क्या यूज करता हूं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर. सो जैसे कि मैंने कहा आरएसआई इज अ डबल एज सोर्ड. सो 14 पीरियड 30-70 के कट ऑफ के बदले मैं 5 और 80-20 यूज करता हूं. मतलब 5 पीरियड आरएसआई इज व्हाट आई यूज along with a 80-20 कट ऑफ बैंड. सो इसमें डिफरेंस ये है कि when I am using a 5 period RSI, it is basically a very fast and a very high sensitive indicator. मतलब जैसे हम पीरियड छोटा कर देंगे ना, तो उसमें जो सेंसिटिविटी ऑफ द इंडिकेटर है, जो रीडिंग्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करने के जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है. तो इसमें फायदा क्या होता है, मेरे को फायदा है, नुकसान भी है. तो 14 पीरियड अगर मैं यूज कर रहा हूं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत स्लो हो जाता है कई बार रिएक्ट करने में. सो बाय द टाइम इट बिकम्स ओवरबॉट, तब तक मार्केट ऊपर जाके नीचे भी आ जाता है और हम पकड़ नहीं पाते, है ना. कई बार मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है और फिर नीचे से बाउंस भी आ जाता है, और ये आरएसआई फिर भी 30 के कट ऑफ पे नहीं आता है इफ आई एम यूजिंग 14 पीरियड. बट जनरली 5 पीरियड यूज करने में फायदा ये है कि ये आपके हर वो छोटे बड़े स्विंग्स को जनरली ये पकड़ लेता है. बट इसमें डिफरेंस ये है कि हमको 70-30 के बदले इसका कट ऑफ जो लेवल है वो 80-20 कर देना है. मतलब 80 के ऊपर ओवरबॉट, 20 के नीचे ओवरसोल्ड. ये हो गया पहली बात. अब इसके साथ में हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि दिस इज नॉट द ओनली इंडिकेटर दैट आई हैव टू सी. ये अंडर द अजम्पशन है कि आरएसआई मैं देख रहा हूं, बट इसके साथ में मैं बाकी चीजें भी देख रहा हूं, राइट. सो सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि रिवर्सल ब्रेकआउट्स मोस्टली विल शो एक्सट्रीम रीडिंग्स. सो जैसे कि मैंने कहा कि आरएसआई हमेशा ओवरबॉट जोन में अगर जाए तो उसका दोनों मतलब हो सकता है. एक्चुअली एट टाइम्स इट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. व्हाट दिस मींस इज दैट लेट्स से इफ अ स्टॉक हैज बीन इन डाउन ट्रेंड, है ना. सो लेट मी ड्रॉ अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक. सो ये मान लीजिए जैसे ये स्टॉक ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और उसके बाद में फिर इसमें मान लेते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल आया, राइट. एक ऐसे लेट्स से इफ देयर इज अ कंसोलिडेशन एंड ये जो है फिर ऐसे करके यहाँ पे ब्रेकआउट आया. सो इसमें अगर हम ब्रेकआउट अगर ड्रॉ करें, सो मे बी वी कैन से दैट लेट्स से इस तरीके का एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर इसमें ब्रेकआउट आया. सो जहां पे ये ब्रेकआउट आ रहा है वहां पे योर आरएसआई रीडिंग हैज टू बी हाई. बाय डिफॉल्ट इट विल बी हाई, क्योंकि आरएसआई रीडिंग है क्या, आरएसआई रीडिंग खाली यही बता रहा है कि ये जो मूव है इसमें कितना गेन था और कितना लॉस था. तो यहाँ पे स्टॉक अगर गिरा ही नहीं है, अगर ये स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ ही दिया है, सो ऑब्वियसली द परसेंटेज ऑफ लॉसेस विल बी वेरी लेस, और
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट? सो मेरा आरएसआई का रीडिंग जो है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इट कुड बी 75, इट कुड बी 80, इट कुड बी 85, सो इट कुड बी एनी रीडिंग. सो बेसिकली हम यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई स्टॉक में ब्रेकआउट अगर आ रहा है, तो वहां पे अगर आरएसआई का रीडिंग अगर आपका थोड़ा हायर एंड में है, तो उसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं या करना भी चाहिए. लेकिन वही रीडिंग अगर ये दोबारा वापस से, मान लीजिए ये स्टॉक एक रिवर्सल के बाद ये एक स्टॉक में यहाँ पे कंसोलिडेशन आया या ऐसे करके, एंड देन द स्टॉक गिव अ ब्रेकआउट, फिर इसमें करेक्शन आने के बाद में ये अभी जो है स्टॉक ऐसे करके ऊपर चल रहा है. अब यहाँ पे एक सब्सटेंशियल रैली आने के बाद में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक में आरएसआई वापस से जो है ना ओवरबॉट रीडिंग में पहुंच गई है, तो दिस इज वेयर आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे अभी कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है. यहाँ पे ओवरबॉट जो रीडिंग है, इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग. सो यहाँ पे जब ये स्टॉक ओवरबॉट हुआ था ये पहली रेंज में, और यहाँ पे होने में बहुत फर्क है, बिकॉज व्हेन देयर वाज अ ब्रेकआउट एट दिस पॉइंट, the stock supposed to have a high reading by default, and even if the high reading was there is nothing alarming, है ना? So this is where I'm going to ignore the high RSI reading. But ये point पे अगर मेरा वापस से अगर high reading आ रहा है RSI का, so this is where probably I will expect the profit bookings to come in, है ना? So ये हमको थोड़ा सा समझना होगा कि हर बार overbought देखने से हमको react नहीं करना है, हमको समझना पड़ेगा कि what is the context of that trade. सिमिलरली ओवरसोल्ड के केस में भी इट इज जस्ट द ऑपोजिट, जहां पे एक अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि अरे अभी तो आरएसआई एकदम ओवरसोल्ड हो गया है सो अभी बाउंस आ जाएगा. नहीं, अगर वो ब्रेकडाउन दे रहा है तो आरएसआई विल बी ओवरसोल्ड, और वो कोई ब्रेक मतलब उसमें बाउंस नहीं आने वाला है, वो और नीचे ही घुसने वाला है. रादर इट इज शोइंग दैट द मार्केट्स आर रियली वीक, है ना? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? Extreme readings in mature trend warrants caution. This was the point that I was talking about. So जब काफी ऊपर अगर चला जाए तो फिर that is what we have to be careful. So precise numbers, if you ask me, these are the numbers. 85 on the higher side and 15 on the lower side is what I am always watchful. And if I'm long in the stock, so this is where I will exit above 85. If I'm short in the stock, I will not actually go short or remain short in the stock if the RSI goes below 15. Remember, this is after the breakout or breakdown has happened, and then the next time when these readings are seen. So avoid breakout or continuation trade with extreme readings. खाली इसमें यही है कि अगर बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट है, like any reading which is at 90-95, है ना, या उल्टा साइड में आप देख रहे हैं कि आरएसआई आपका 10 के नीचे है या 675 ऐसा कुछ चल रहा है, सो वहां पे यू माइट डिसाइड नॉट टू टेक द ट्रेड ऑन अ ब्रेकआउट. सो दैट इज परफेक्टली फाइन. सो जस्ट अवॉइड द एक्सट्रीमली हाई रीडिंग्स, बट द रेस्ट ऑफ द केसेस जो जनरल 80s और 20s की जो रीडिंग्स है, दैट इज परफेक्टली फाइन टू टेक अ ट्रेड ड्यूरिंग ब्रेकआउट्स, एंड दैट विल बी लाइक आल्सो द लेवल्स नेक्स्ट टाइम व्हेन दीज रीडिंग्स आर सीन टू बुक प्रॉफिट्स. सो इसमें हमको एक और चीज ध्यान में रखना है कि टाइम स्केल, तो जितना बड़ा टाइम स्केल में हम देख रहे हैं, जैसे अगर हम एक डेली चार्ट में देख रहे हैं तो उसमें हम मान लीजिए लास्ट 1-1.5 साल का डेटा देख रहे हैं, तो उसमें अगर हमको कहीं ना कहीं अगर लास्ट 1-2 महीने के प्राइसेस में हमको वो स्टॉक अगर ओवरबॉट दिख रहा है, सो द करेक्शन कुड बी फॉर मे बी लास्टिंग अबाउट अ वीक. 4-5 दिन के लिए करेक्शन आ सकता है, जहां पे वो आरएसआई वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा. बट वही अगर हम मंथली चार्ट में देखते हैं कि मंथली चार्ट में द स्टॉक इज ओवरबॉट, सो वो रीडिंग को कूल ऑफ होने के लिए द स्टॉक मे बी विल टेक 2-3 months टू कम डाउन टू अ रीजनेबल लेवल, राइट? सो जिस स्केल में वो हम रीडिंग को देख रहे हैं उस स्केल के हिसाब से करेक्शन हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए. What is the next point? So the next point is contra positions not advisable. So अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि अगर आरएसआई 85 या 90 पे दिखे तो क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं, आई वुड से नो, क्योंकि आरएसआई 90 का आरएसआई 95 भी जा सकता है, 98 भी जा सकता है, हम नहीं जान सकते, और उतने जाते जाते वो स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, दैट ऑल्सो वी डोंट नो. सो द बेस्ट वे टू ट्रेड these readings is to avoid getting into a long position. If you see a reading at 85, don't short if you see a reading below 15 or 10. और अगर आप शॉर्ट है तो काट लीजिए, लॉन्ग है तो भी काट लीजिए 85 के ऊपर, राइट? सो आरएसआई मैं पर्सनली आई यूज इट टू क्लोज पोजिशंस and not to enter a position if I see extreme readings.
So what is the next point? So next is the market internals. I'll give you an example of all of it. Don't worry, I will use a trend line, I'll use an RSI to pick up the recent cases. So हमको और थोड़ा conceptual clarity इसमें आ जाएगा. So market breadth. So basically जो market breadth है, इसमें कुछ अलग से ऐसे आप मत सोचिए. मार्केट ब्रेड्थ को आप ये सोचिए कि रादर देन एनालाइजिंग अ सिंगल स्टॉक या निफ्टी, आप पूरा अगर 200 स्टॉक का जो बास्केट है उसको अगर आप होलिस्टिक तरीके से अगर आप देखें, अगर आप पूरा जो 200 आपका यूनिवर्स है उसको आप होलिस्टिकली स्टडी कर रहे हैं और उसमें आपको जो फील आ रहा है कि आर यू एबल टू सी लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स कमिंग इन, और आर यू एबल टू सी most of the stock at readings below 5 or like below 15, like they are oversold, कैसा आपको पिक्चर दिख रहा है? So if you are able to see a situation, for example, जहां पे आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉक ओवरबॉट हैं, अब maybe 30% of the stocks are overbought, like they are having a reading above 80, तो वो स्टॉक में आप हाथ नहीं लगाएंगे, नंबर 1. दूसरा, आपको कोई फ्रेश ब्रेकआउट दिख भी नहीं रहा है. So whatever the stock had to give a breakout, they had already given a breakout and they are already going up. तो वहां पे आप वापस से वो जो था अपॉर्चुनिटी वो मिस हो गया है या आपने लिया हुआ था पहले, अभी लेकिन अभी आप और नहीं ले सकते हो, तो आपको फ्रेश ट्रेड नहीं मिल रहे हैं. तो ये दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट आप ये भी देख रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो एक्चुअली ब्रेकआउट देने के बाद में जो है ना वो चले नहीं है. मतलब क्या कि जिन्होंने भी वो ब्रेकआउट पे पोजीशन लिया था, दे आर ऑल स्टक. सो अगर ये सिचुएशन आपको दिख रहा है कि most of the stocks are overbought, forget about Nifty. Nifty doesn't show me anything. If most of the stocks are overbought, मार्केट में फ्रेश पोजीशंस नहीं मिल रहे हैं, जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं स्टॉक अभी भी, लेकिन जो भाग रहे हैं वो पुराने ब्रेकआउट वाले स्टॉक है, फ्रेश कुछ एंट्री है नहीं, क्योंकि इसमें आपको रिस्क रिवार्ड बैठेगा ही नहीं, आपको स्टॉप लॉस ही नहीं मिलेगा कहां पे स्टॉप लॉस हमको रखना है. तो फ्रेश ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, और जो एक आध इक्का दुक्का इधर उधर अगर ब्रेकआउट थे वो भी चलने बंद हो गए. सो दिस इज अ typical case where you can expect the markets to pull off a bit or see a correction in the next maybe 1 or 2 days or maybe within a week. So ये एक example है जहां पे आप अगर बहुत बारीकी से अगर इस चीजों को अगर नोटिस करेंगे तो it will give you a very early indication. तो जो मैंने कहा ना एकदम शुरू में कि the best way to trade or to avoid trade in tough times is to avoid actually getting into a tough situation in the first place itself. तो वो कैसे, वो ऐसे, तो कहीं पे भी कुछ ऐसा लिखा नहीं होता है कि ये अभी कल मार्केट गिर जाएगा. So the point that I'm trying to drive home is that basically मार्केट में होता यही है कि अगर मार्केट में सारे पोजीशंस फंस रहे हैं, so I as a trader अगर मेरे 10 पोजीशन फंसे हुए हैं तो मैं नया कोई पोजीशन बिल्डअप नहीं करूंगा. दैट इज नंबर 1. सेकंड, मेरे को फिर मेरे दिमाग में ये चलेगा कि भाई अभी मेरे को पोजीशन रिड्यूस करने हैं बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, आई एम समहाउ फीलिंग स्टक, राइट. इसके साथ अगर एक नेगेटिव न्यूज अगर आ जाए मार्केट में तो आई एम रेडी टू सेल बिकॉज अभी आई एम फीलिंग स्टक, बिकॉज मेरा सेंटिमेंट ऑलरेडी नीचे आ गया है, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई पोजीशंस, राइट. सो देयरफॉर इफ इन केस एनी नेगेटिव न्यूज कम्स इन, सो आई एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आई एम गोइंग टू रिएक्ट टू दैट न्यूज. सो कहने का मतलब ये है कि मार्केट भी नेगेटिव न्यूज या पॉजिटिव न्यूज पे तभी रिएक्ट करता है जब उसको रिएक्ट करने का होता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में जब हमारे यहाँ पे इंडिया में लॉकडाउन शुरू हुआ, दैट वाज इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ मार्च, और मार्केट आप चार्ट खोल के देख लीजिए, मार्केट ने जो 7,500 का लो बनाया था दैट वाज इन द एंड ऑफ मार्च ओनली. आई थिंक 23rd 24th मार्च को ही लो लगा था 2020. सो व्हेन एवरीथिंग on earth was at the heights of negativity, हमारे यहाँ पे लॉकडाउन चल रहे हैं, कोविड के केस एकदम शूट अप कर रहे हैं, वहां पे मार्केट ने फिर कैसे लो लगा दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया, है ना. क्योंकि उसका कारण ये था कि मार्केट ने उसके पहले ही उस चीज को डिस्काउंट कर लिया एंड एवरीथिंग वाज लाइक सो मच ओवरसोल्ड दैट लिटरली इट हैड नथिंग टू लूज, और नीचे जाने का जगह ही नहीं था. सो मार्केट उस टाइम पे नेगेटिव न्यूज पे और रिएक्ट नहीं करने वाला था. सो दैट इज व्हाट हैपेंस. सो इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ वेरी माइक्रो लेवल, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट इंटरनल्स, अंदर में घुस के. सो एक आदमी का अगर हमको बोल रहा हूँ कि भाई आपका हेल्थ कैसा है, सो द डॉक्टर विल चेक माई पल्स, ही विल चेक माई हार्ट, ही विल चेक माई लिवर, किडनी, एवरीथिंग, आईज, लेग्स, एवरीथिंग, राइट. और तब वो बोलेगा कि हाँ आपको ये ठीक है, आप ठीक हो या आप ठीक नहीं हो.
So this is the same approach that we are going to implement here also. So if you scan through the NSE 200, not every day, but maybe on and off, like once a week or twice a week, that will actually give you an overall idea about what is happening in the market. Second, जब आप डेली ऐसे देखेंगे ना हर हफ्ते में एक दो बार, तो आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा, बिकॉज यू विल नो दैट देयर इज नथिंग टू बी लुक्ड इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक. ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, आई नो दैट इसमें कुछ है नहीं, बट ये स्टॉक में हाँ इसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, सो यू विल बी अपडेटेड एंड इट विल एक्चुअली गिव यू अ वेरी मच टॉप व्यू ऑफ व्हाट थिंग्स आर गोइंग. And along with this, you also get into a psychological, depth of what others are going through. What is the experience that others are having, like in terms of the emotional feel. So, इस तरीके से अगर हम एक सोचे एक फ्रेमवर्क की तरह से, so maybe you can think of it like मार्केट में कितने परसेंट स्टॉक अप ट्रेंड में है और कितने परसेंट स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और जो अप ट्रेंड में है उसमें से कितने मेरे को ब्रेकआउट दिख रहे हैं और कितने में मेरे को ब्रेकडाउन दिख रहा है. तो इस तरीके से अगर आप सोचे तो आपको एक मार्केट का बैलेंस का भी आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में झुकाव किस तरफ है. सो इफ देयर आर मोर ब्रेकडाउन्स कंपेयर टू ब्रेकआउट्स, तो मतलब मार्केट थोड़ा सा वीक है. अगर मेरे को उल्टा सिचुएशन, अगर मेरे को ब्रेकआउट्स ही ब्रेकआउट दिख रहे हैं और जो मतलब शॉर्ट साइड में है वो काफी गिर चुके हैं और उसमें ओवरसोल्ड ट्रेडिंग है, उसमें गिरने का जगह कम लग रहा है, सो दैट मींस मार्केट्स आर रेडी फॉर अ बाउंस. तो इस तरीके से भी हम मार्केट को गेज कर सकते हैं. नाउ हैविंग सेड दिस, ये एक पर्टिकुलर चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो कि हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि मेरे को मार्केट के पर्सपेक्टिव को भी इंपॉर्टेंस देना है, इन द सेंस कि टाइम स्केल, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट आई एम लुकिंग एट, और मेरा ध्यान क्या है, मतलब एम आई ट्राइंग टू प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट 7 days और नेक्स्ट 7 months. मेरा पर्सपेक्टिव क्या है ना. सो मेरा पर्सपेक्टिव जो भी हो, हमेशा आपको थोड़ा सा जिस टाइम स्केल में आप ऑपरेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ डे ट्रेडर, इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, तो आप मोस्टली आवरली चार्ट देखेंगे या और लोअर टाइम स्केल के चार्ट्स देखेंगे. बट हैविंग सेड दिस, यू आल्सो मस्ट बी अवेयर ऑफ द डेली चार्ट्स एंड द वीकली चार्ट्स. आपको वो कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए. द रीजन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. सो इफ आई आस्क यू कि यहाँ पे सर आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जो रेड है इट इज लाइक रेड ब्लॉक्स एंड द ब्लू कलर इज अ bullish block. So agar yehi mera sample if I'm showing you, and if I ask you what do you think is the probability of getting a green or a blue, you will say that there are more number of blues than red. So chances yehi hai ki yahan pe uptick aayega, ya the blue box will come, right, based on this sample. But the moment I show you this next particular slide, you will say अरे ये तो उल्टा है, I think the probability is red, there are more chances of seeing reds than blues. So ये है sample. तो अगर मैंने पूरा ओवरऑल कॉन्टेक्चुअल अगर मेरे को अवेयरनेस हो, तो मैं आपको कहीं का भी दिखाऊं, आप बोलेंगे कि भाई रेड इज मोर लाइकली टू हैपन, ये ब्लू तो उस पैच में था, बट इन जनरल इफ यू आस्क मी आई विल बैंक फॉर द रेड. सो प्रोबेबिलिस्टिकली आपको अगर मैं बोलूं कि यहाँ से कोई भी एक स्क्वायर पिक कीजिए विद आईज क्लोज्ड, so the chances are that you will pick a red color block, right, because there are more number of reds. But you would not have understood this if you are only looking at this microscopic data. So iske liye jaise hi if I'm having a broader understanding, I know what is the like the probability thing. So ye important hai samajhna. So just coming to this quick slide, basically आपको जब भी आप कोई भी मेथड यूज करते हैं, मान लीजिए आपने ट्रेंड लाइन यूज करके आपने पैटर्न ट्रेडिंग चालू किया, सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द स्केल दैट यू वांट टू ऑपरेट. डू यू वांट टू बी अ डे ट्रेडर और आर यू वांट टू विलिंग टू बी लाइक अ लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर, लाइक होल्डिंग फॉर 2-3 months और मे बी मोर. सो जो भी आपको टाइम स्केल में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से यू हैव टू लुक एट द डेटा एंड ऑल्सो द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द टाइम स्केल दैट यू आर ऑपरेटिंग. सो इंडिकेटर्स भी आपको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेने हैं. साथ ही आपको इस बात का भी आइडिया होना चाहिए लाइक हाउ मेनी ट्रेड्स आर यू गोइंग टू गेट इन अ डे और इन अ मंथ और इन अ मे बी इन अ ईयर. सो उससे आपको आइडिया ये लग जाएगा कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ रिकवरिंग एनी losses that you would have to incur at times.
दूसरा पॉइंट ये है कि आपको रिस्क रिवार्ड का एक अंदाजा होना चाहिए कि एम आई गोइंग टू ऑपरेट एट अ 1:1 रिस्क रिवार्ड और 1:1.5 और 1:2 क्या है. सो दैट विल आल्सो गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग कि मेरा स्ट्राइक रेट फिर क्या होना चाहिए. So for example, if I'm operating at a 1:1 risk reward and if I have a 50% strike rate, I'm not going to make any money, right? But वही अगर if I'm operating at a 2:1 risk reward, मतलब ₹2 का प्रॉफिट और ₹1 का रिस्क, even a 50% strike rate strategy will give me money, है ना. So ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि what is the drawdown that I'm looking at, कितना रिटर्न मेरे को सालाना आ सकता है ना, what is the run of losses that can happen. So all these things I must be very aware and very careful about, and based on this I should actually decide upon my position sizing. तो एक बहुत क्रिटिकल एंगल होता है कि हमेशा जब भी आप कोई ट्रेड लें, कोशिश करें कि हर पोजीशन जो हो ना इक्वल अमाउंट का ले, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि ये वाला ट्रेड आपको लगता है कि नहीं दिस इज मोर कॉन्फिडेंट एंड दिस इज लेस लाइकली टू हैपन, तो जो लेस लाइकली है तो आप लेंगे क्यों, है ना. तो जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम यही सोचते हैं ना कि ये वाला सक्सेसफुल है, और यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं इसमें थोड़ा सा चांस कम है तो मत ही लो फिर ट्रेड, है ना. इट इज बेटर टू अवॉइड दोस 50-50 केसेस वेयर यू आर थिंकिंग दैट इट इज अ 50-50 केस. सो फ्रॉम आवर एंड बाय डिफॉल्ट वी टेक ओनली दोस ट्रेड्स वेयर वी फील वी आर 100% कॉन्फिडेंट, राइट. बट having said that also there is a possibility that we know कि my eventually I will get maybe a 60% or a 70% strike rate out of all the trades that I'm taking. तो उसमें हर trade has to be of equal amount because I don't want to be taking a profitable trade with less amount of money and taking a loss making trade with larger position. तो उसमें क्या है कि फिर वो profit loss का equation बिगड़ जाएगा. So better ये कि हम probability के ऊपर छोड़ दें. हमको मालूम है कि भाई हमको 2 out of 3 ट्रेड्स मेरे सही पड़ते हैं, सो लेट मी टेक इक्वल ट्रेड्स इक्वल पोजीशन साइज इन एवरी ट्रेड. और कहीं पे अगर मेरे को लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड खराब है, मतलब जो स्टॉप लॉस है वो मेरे को दिख नहीं रहा, वो बहुत नीचे है, तो वो ट्रेड आप छोड़ दीजिए, है ना. क्योंकि आप रिस्क अगर नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं तो वो ट्रेड कितना भी आपको अच्छा लगे, it is better to avoid those trades. So there has to be a mechanism to understand risk and cut down on risk, without which I would say not to take any trade if you can't define the risk before taking the trade actually. So ऊपर में फंसने का तो मैंने अपने एंड से जो मैं तरीका यूज करता हूँ वो मैंने बताया. जस्ट टू रिकैप, लाइक लुक एट द मार्केट इंटरनल्स. निफ्टी का चार्ट देखिए, बट निफ्टी के चार्ट से आपको उतना इंसाइट नहीं मिलने वाला है जो अगर आप पूरा लिस्ट ऑफ स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ दी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स. आप दूसरा भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट लुक एट द ब्रेथ ऑफ द मार्केट. Are you getting more number of trades? So if the market majority of the stocks are showing overbought readings, अगर वैसा है तो आप मतलब क्या है कि अभी फ्रेश ट्रेड कोई आने वाला नहीं है, तो मार्केट इज गोइंग टू स्टॉल. अगर नहीं भी गिरा तो मार्केट फ्लैट हो जाएगा, तो आपको बाई करके फायदा नहीं है. सो मैंने कुछ तरीके तो बताए, बट somehow let's say if I got somehow trapped already, then what do I do? तो पहला काम ये है कि पैनिक में नहीं आना है. ये सबसे पहला काम है ना. पोजीशन लिया, अगले दिन 10% नीचे, है ना. तो अगर मैंने बेसिक हाइजीन मेंटेन की होगी तो मेरे को उतना बुरा लॉस नहीं होगा जितना अदरवाइज हो सकता था, है ना. सो सबसे पहला मेरा काम ये होना चाहिए कि आई शुड प्लान फॉर द नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल वे आउट. जो होना था वो तो हो गया, अभी अगला हम बेस्ट डिसीजन क्या ले सकते हैं वो हमको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए. सो सबसे पहले उस डायरेक्शन में वी शुड आस्क सर्टेन क्वेश्चंस लाइक हाउ मच कैन इट गो डाउन फर्दर बिफोर इट बाउंसेस. मतलब अगला सपोर्ट कहां पे मेरे को लग रहा है, वो सपोर्ट कितना नीचे है, और अगर वो सपोर्ट इनकेस अगर वहां से घूम जाता है तो वहां तक घूमने के पहले वो कितना लॉस मेरे को और एडिशनल दे सकता है. अगर वो मान लीजिए वो जो नीचे का सपोर्ट है, मैंने फॉर एग्जांपल इफ आई बॉट अ स्टॉक एट 500, आई एम सीइंग अ लॉस ऑफ लेट्स से 450, अभी 450 पे आ गया. अब मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इसके नीचे जो है ना नेक्स्ट सपोर्ट 420 रुपए का है. सो फॉर एग्जाम्पल 450 से 30 रुपए और एडिशनल लॉस है ना, बिफोर द स्टॉक कैन एक्चुअली कम एट अ सपोर्ट. तो मेरे को फिर ये पूछना चाहिए कि क्या मेरे पास में उतने फंड्स हैं कि मैं 420 रुपए तक अपने पोजीशंस को होल्ड करके रख सकूं. क्या मेरे को उतना लॉस देखना जरूरी है, क्या मैं काट के निकल के आ सकता हूं. ये सारे कुछ क्वेश्चंस हमको पूछने चाहिए. सो अगर मेरे पास में फंड्स है भी और मेरे को लगता है कि इसका सपोर्ट बहुत नीचे है,
सो काट दीजिए, दैट इज द बेस्ट द पॉसिबल सोल्यूशन आई वुड से। पूरा नहीं काटते हैं तो आपको कम से कम पोजीशन रिड्यूस कर लेनी चाहिए, ताकि इनकेस अगर ऊपर आ जाए तो आपके पास में पोजीशन है ही, बाकी पोजीशन फिर आप कॉस्ट पे काट सकते हो या और ऊपर काट सकते हो। और अगर स्टॉक वापस से नीचे चला गया तो जो एक्चुअल सपोर्ट था वहां पे आप फिर दोबारा उसको रीइनिशिएट कर सकते हो विद अ वेल डिफाइंड रिस्क, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका पोजीशन एक बार ऐसे गलत पड़ गया ना, उसमें जनरली कोशिश कीजिए कि उसको निकल जाने का, उसमें से एकदम प्रॉफिट निकालना है ऐसा मत सोचिए। फॉर एग्जांपल जो मैंने टाटा मोटर का ब्रेकडाउन दिखाया, वो 500 रुपए के लेवल पे ब्रेकडाउन आया था। 450 के लेवल पे अगर किसी ने ये प्रोग्रामिंग मतलब प्लानिंग की होती कि नहीं भाई इसमें से मेरे को निकलना है, इसमें प्रॉफिट में निकलना है, तो वो प्रॉफिट में कब निकलता? अभी तक नहीं निकला होगा, है ना। अभी तक द 500 रुपीज प्राइसेस हैव नॉट कम। द अदर थिंग इज दैट डोंट, I mean, generally this doesn't work. Don't try to average. स्टॉक गिर रहा है, उसमें कई बार हमने देखा है कि लोग उसमें एवरेज करते जाते हैं. So that is not the ideal thing to do, because if you have not planned for that, if you have not planned for an additional increasing your positions, you're increasing the position means you're increasing the risk also, है ना. So हम ये assumption लगा रहे हैं कि अभी बाउंस आ जाएगा, क्यों बाउंस आ जाएगा, नहीं ओवरसोल्ड है. तो that is not the only criteria. If you have not planned for the averaging, please don't do that. Rather wait for the stock to take a support, and if you think that this support is going to hold, then let it be. और अगर आप सोचते हैं कि नहीं फिर मैं एक एडिशनल पोजीशन लूंगा, तो उसमें जरूर फिर एक स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड पूरा टाइट जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन कीजिए, है ना. अदरवाइज इट इज गोइंग टू ऐड मोर ट्रबल टू योर सिचुएशन. सो नेट नेट अगर मेरे पोजीशन फंसे हुए हैं, सबसे पहले मेरे को एक ट्रेड ऑफ ढूंढना है जहां पे एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट मेरे को मिल जाए. अगर मैं 500 रुपए पे फंस गया हूं तो आई विल एक्चुअली नॉट वेट फॉर अ पुल बैक अप टू 500, क्योंकि वहां पे तो सबका पोजीशन फंसा हुआ है, वहां तक तो वो स्टॉक जाएगा ही नहीं. सो द बेस्ट पॉसिबल एग्जिट दैट आई वुड लुक एट इज मे बी 480 और 485, है ना. तो जहां पे 10% नुकसान हो रहा था, वहां पे अगर मेरे को 2-3% के नुकसान पे अगर मैं निकल आता हूं, तो दैट इज द बेस्ट वे टू डू, है ना. और इसमें फिर आप उल्टा ये भी एक एंगल लगा सकते हैं एनालिसिस का, ये स्टॉक में कितना बाउंस आ सकता है. सो इफ यू फाइंड दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस एट 480, देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर 500, बिकॉज़ देयर आर लेस चांसेस दैट इट विल गो टू 500, है ना. सो वो केस में बेटर है कि आप 480 पे अपनी पोजीशंस काट दें, एक बार के लिए लॉस ले लें, और वही पैसा फिर आप दूसरे अपॉर्चुनिटी में यू कैन ऑलवेज रिकवर, राइट. सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट. एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट द माइंड गेम. मतलब इसमें टोटली जो है आपको शुरू बिफोर लाइक at the onset, before you even take a trade, you have to define how much risk I want to take per in a given stock या in a given trade. दूसरा, टाइम को भी एक स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रीट कीजिए. ऐसा नहीं कि हमेशा आपका जो स्टॉक है वो प्राइस स्टॉप लॉस को ही आके ट्रिगर करना होगा तभी हम पोजीशन काटेंगे, नहीं. ऐसा जनरल मैं नहीं करता हूं. अगर मेरे स्टॉक अगर 2-3 दिन में नहीं चलते हैं तो मैं उनको काट देता हूं. सो जहां पे मैंने हो सकता है कि एक ट्रेड लिया था ये सोच के कि मेरा 3% का स्टॉप लॉस है और 5% का टारगेट है, ऐसा बहुत बार होता है जहां पे वो स्टॉक को मैं आधे % प्रॉफिट या लॉस में काट देता हूं, बिकॉज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर वो 2-3 दिन में नहीं चले तो वो पैसा आई कैन यूज इट एंड यूज इट समवेयर एल्स. द अदर थिंग इज दैट यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि ये स्टॉक क्यों नहीं चला, अगर ये ब्रेकआउट था तो क्यों नहीं चला, यू नो. दिस हैज टू बी आस्क्ड आल्सो. दैट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. सो जहां पे एक ब्रेकआउट आया, आपने भी लिया, मैंने भी लिया, अभी अगर वो स्टॉक नहीं चल रहा है तो कुछ दिन बाद आप भी सोचेंगे काटने का, मैं भी सोचूंगा काटने का. जहां पे सब लोग एक साथ सोचेंगे काटने का, तो द स्टॉक विल सडनली नॉट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट एट अ रीजनेबल पोजीशन. सो आई हैव टू बी वन टिक और वन शेड अहेड ऑफ द कर्व, है ना. बाकी दुनिया से थोड़ा सा एक कदम हमको आगे चलना है. तो जहां पे बाकी लोग ये फील करेगा ये स्टॉक में हम फंस गए हैं, यू कम आउट ऑफ इट, right. So that is what has worked for me phenomenally so far, and that is what I would also suggest to you. दूसरा, हर ट्रेड को जो है ना एक प्रोबेबिलिटी के एंगल से सोचिए. उसमें ये मत सोचिए कि ये सक्सेसफुल होगा और इससे ही हमको मेकअप करना होगा, एकदम ऐसे नहीं सोचना है. हमको हर ट्रेड को सोचना है कि भाई ये सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है, बट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू मेक मनी, बिकॉज देयर इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज हैपनिंग. सो एक रीजनेबल लेंथ ऑफ ट्रेड हमको लेते रहना है, एंड द रिजल्ट्स विल कम इफ द मेथड इज राइट, ठीक है. साइकोलॉजिकल गैप बिटवीन थिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग. कई बार हम क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि हम ये वाला ट्रेड लेंगे, ये वाला ट्रेड करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे. सो ये जो है ये एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ गोइंग रॉन्ग. सो
हमको ये वाला फियर जो है ना कहीं अपने दिमाग से हमको निकालना है. इफ यू आर एबल टू गेट रीड ऑफ दिस फियर of losing money in the market and the fright of going wrong in the market, so we will be absolutely bulletproof. हमको कोई चीज से फिर फर्क नहीं पड़ेगा. We will be trading like a machine and we will be flawless in our decision making, है ना. चौथा पॉइंट ये है कि बुकिंग लॉसेस एंड एक्सेप्टिंग लॉसेस. कई बार ये होता है कि हम स्टॉप लॉस तो ले लेते हैं लेकिन वो फिर हमारे दिमाग में चलता रहता है कि भाई इतना का लॉस हो गया, हम कैसे रिकवर करें, हमको अभी रिकवर करना है, अगला ट्रेड क्या आएगा उसमें रिकवर करना. नो, डोंट गेट इनटू अ वेंजेंस मोड. नो, एकदम नहीं. जो लॉस है उसको भले आपने ले लिया है, क्या क्वेश्चन ये पूछना है आपको, क्या हमने उसको इमोशनली एक्सेप्ट किया है. सो इट इज नॉट ओनली टेकिंग द लॉस फिजिकली, इट इज ऑल्सो इमोशनली यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉस. क्या भाई हो गया, ठीक है, खत्म, देयर द स्टोरी, आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड. वो मेरा बैगेज नहीं होना चाहिए इमोशनली कि अरे पिछले वाले ट्रेड में मेरे को 50,000 का नुकसान हुआ, सो आई नीड अ ट्रेड व्हिच कैन रिकवर 50,000 नाउ, राइट. दैट शुड नॉट बी द केस. मार्केट आपको मौका देगा, अपने हिसाब से मौका देगा, नॉट आपके हिसाब से, राइट. सो हमको वेट करना है कि मार्केट हमको हमारे मेथड और हमारे टेक्निक के हिसाब से कब हमको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और हमेशा देता है. सो इफ यू एक्सेप्ट द लॉसेस इमोशनली यू विल नॉट बी इन अ पेन and there won't be any fear of taking the next trade. So nothing to fear, nothing to avoid, and therefore you will be a better trader in terms of decision making, execution and everything, है ना. So इस सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा इमोशनल डिसिप्लिन चाहिए. आपको पोजीशन साइजिंग व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको हमेशा ये पूछना है कि भाई ये ट्रेड में am I okay with 5,000 loss? If the answer is yeah, go ahead and take the trade, right? If the answer is no, then you don't take the trade. Then you ask the question कि ठीक है 5,000 नहीं, am I okay with 2,000 loss? Yes. So that is the position you should be taking. So पहला तो ये कि इमोशनली हम कितना लॉस ले सकते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ आवर बैंक बैलेंस, बट इमोशनली हम कितना लॉस ले सकते हैं. तो बैंक बैलेंस और इमोशनल लॉस ये दोनों का ही हमको देखना है, ठीक है. सो मार्केट में ये भी एक ध्यान में रखिएगा कि नो मनी इज अ स्मॉल मनी इन द मार्केट एंड नो मनी इज अ बिग इनफ मनी इन द मार्केट. पैसा कितना भी बड़ा हो, इट डजंट मैटर. जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा अकॉर्डिंगली आप उतना वैसे पोजीशन लेंगे. तो कोई भी पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इट डज नॉट गारंटी अ प्रॉफिट, राइट. सो विद दिस आई विल जस्ट मूव ऑन टू द चार्ट सेक्शन. लेट मी शो यू द चार्ट्स, राइट. सो दिस इज द current Nifty chart, if I have to say. So if you are to talk about the present situation, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, this is a daily chart, okay, and well let's just first understand what happened in the preceding few weeks. So basically the markets were in uptrend. यहाँ से ये पूरा uptrend में चल रहा था, उसके बाद there was a correction as you can see from this point, right, and after the correction the uptrend started to take off. Let me show you the previous uptrend breakout. This was the resistance line, है ना. जो भी हमने principles हमने सीखे हैं उसी के हिसाब से you can see that this was a previous breakout area. So यहाँ से breakout आने के बाद में the stock, I mean the index actually moved up. So this was somewhere around 17,200 odd level. So यहाँ से ये breakout आया और ये stock सीधा, I mean निफ्टी सीधा हमारा it went up to 18,300, जो कि अभी तक का अभी I mean जो recent में जो हाई लगा था, I mean sorry, it is 15,900, and from this particular point ये just let me clear this thing. Yeah, so let me redraw. So this is the trend line that I'm talking about. So ये breakout point था. From this breakout point there was a clear up move which came through and it took the market up to the levels of more or less 18,300 up to this point. And from this point what was different? You will say the news flows regarding the Russia came in. The answer is no. This is Jan. This is Jan end. ये देखिए, ये जनवरी 18th January 2022 है. So यहाँ पे न्यूज नहीं आया था, यहाँ पे कुछ और ही था. यहाँ पे it was just that markets were extremely overbought. Now if I
have to show you the RSI readings at this particular point around these levels. The RSI, the 5-period RSI on daily charts on Nifty was at about 85, 86 range, 87. So इससे हमको क्या पता चलता है कि this was a point where markets were vulnerable for any kind of profit booking. So this was the point जहां पे हमको obviously long positions जो थे वो हमको काट लेने चाहिए थे, because this was a point where I was anyway expecting a correction. तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद the correction came in and it came back to the original breakout area. देखिए यहाँ पे ये पूरा एक बॉक्स मैंने बना के रखा है. So this is the original, support zone जहां से there is a cushion and the markets again started to take off, right? But the problem all that started happening was around this point itself. अगर आप यहाँ पे देखें तो this is the end of Feb. Let me just highlight the area. This is the end of Feb. This particular zone. So this is where I would say the problem actually started, because अगर आप देखें so the market started to go up eventually from this point, but after this low was made, the market never really took off. It started to go up, and from this point onwards, let me show you. After this green tick here, the markets really never took off. है ना? मार्केट में एक जो है हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्टैग्नेंसी आ गया, और यही if you would have looked into all the stocks, the majority of the stocks would have shown a very similar behavior. ये जो uptick था, this is what it took a U-turn kind of. So this is what, if you are only seeing on a particular stock or on a particular index, it doesn't matter. But if you are seeing this sort of a behavior across the market, then it is a problem. The other thing that I would recommend you to do is आप हमेशा ये निफ्टी मिड कैप के इंडेक्स को भी हमेशा ट्रैक रखिएगा, because this is what is the real picture of the overall market. Because मिड कैप्स भी काफी एक्टिव होते हैं, और स्पेशली जब मार्केट में वीकनेस होती है तो इट इज द मिड कैप इंडेक्स व्हिच विल रिएक्ट फर्स्ट, वेदर वीकनेस और स्ट्रेंथ. मिड कैप इंडेक्स आपको बहुत कुछ बताता है, खाली निफ्टी या बैंक निफ्टी देखने से नहीं चलेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वुड से दैट यू आल्सो शुड बी लुकिंग एट. एक्चुअली मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं. आई लुक एट दिस ओनली अदर देन स्टॉक्स. सो माय टेक्निक इज वेरी डिफरेंट. लेट्स से let's just do an analysis at a sector level. So for example, I said that we were looking at the end of Feb time frame. So what I'll do is I'll show you one by one all the indices. So I'm starting with Nifty Auto. So let us just see what was the picture at the end of Feb. So end of Feb में यहाँ पे auto में देखिए, auto में क्या था? Auto में there was a support line which was around this area, and it was hovering around at that support. ये auto में देखिए, this was mid of Feb, 14th Feb, and then it bounced off. But again, when it came down, this came down in the month on 24th of Feb, right? So 24th of Feb में ये एक साथ यहाँ पे breakdown आया. Mind it, 24th was Feb में, this is the day when there was a gap down. So ये gap down के साथ ही auto में भी एक बड़ा breakdown आया, but जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि it was lingering at the support for quite a few time. So ये बार बार support से ऊपर आने का कोशिश कर रहा था. Similarly, अगर हम commodities की बात करते हैं, so there was a support trend line, a very short-term support trend line which I could have drawn using these two last lows, and this was end of Feb. So even the commodities or the cement space, that was also not in a very great shape. Next is energy. So end Feb, यहाँ पे क्या picture था? यहाँ पे भी the energy was also working with this sort of a support, and it was in a way trading in a triangle, I would say. और ये triangle में फिर ये नीचे की तरफ यहाँ पे breakdown आ गया. So the energy also collapsed. Financial services again the very same thing. In fact, it was a very leading indicator जहाँ पे financial services में ये आपका यहीं पे जो है ना ट्रेंड कॉम्प्रोमाइज हो चुका था. ये सपोर्ट आपका टूट के ये नीचे आ चुका था. दिस वाज द मिड ऑफ फेब. सो द फाइनेंशियल्स वेयर एनीवे ट्रेडिंग वेरी वीक. FMCG वाज सेम स्टोरी. इट वाज आल्सो नॉट वेरी इन अ वेरी ग्रेट शेप. Where was the support? If I have to draw this support, I would have drawn this support. So
दिस इज द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगेन एंड फेब यहाँ पे जो है ये एफएमसीजी का भी सपोर्ट टूट गया. सो दिस वे इफ यू विल सी दैट वन आफ्टर अनदर यू नो मेजॉरिटी ऑफ द sectors gave an indication of a breakdown. Abhi now this IT index, you will say IT actually corrected before that. It corrected in the month of Jan. So IT mein, again I would say that the contextual awareness has to be there. So IT index actually gave a breakout at this point, है ना, एक consolidation के बाद. So there was a resistance trendline breakout, and if you will see that RSI at these points were at about 70, 75, these levels, you know, the 80 mark. So यहाँ पे एक breakout के बाद में अगर ये RSI overbought था, तो there was nothing abnormal about it, है ना. And but the important thing is that when this goes to this point, when you can say that yes, the breakout has happened, and after the breakout there is a substantial rally as well. So at this point I'm going to ignore the RSI reading because it is just giving a breakout. But once it goes up to these levels, this is where I cannot ignore RSI. So यहाँ पे अगर आप देखें तो the RSI reading was somewhere around 90s. Yeah. So obviously that would have meant that I would actually be looking to book profit, and I would actually be expecting some kind of a correction to come in. उसके बाद में फिर क्या ये this actually the correction, you know, in a zigzag it started, and finally it just, you know, went down all the way back to the support zone at the lower level. So इस तरीके से if you are using these three things in combination, like as I said, the overall breadth of the market in terms of how many breakouts, breakdowns you are seeing, in terms of the RSI readings, are you able to see majority of the stocks or sectors at an overbought level or an oversold level? So अभी जैसे अगर हम recent की बात करें, अभी for example, let me just flip it to the recent thing. So okay, let's say now the pharma thing. So let's say यहाँ पे pharma index, this is the 7th of March. So यहाँ पे एक लो लगा, उसके बाद में यहाँ पे हमको एक breakout दिखा. So I'm able to see a breakout in Nifty Pharma, which just happened on 11th of March, like on Friday. Okay. So I'm able to see a breakout here. That is number one. PSU banks mein, I can see the PSU banks bouncing off from the previous lows, right? So the PSU banks are also bouncing off. Maybe the bounce can continue a bit further because I'm going to be looking for a retracement type of a thing coming in. So जब तक retracement चल रहा है तो चल रहा है, because unless there is a resistance coming in, the retracement can continue, right? Similarly, realty mein bhi, it is not a very great trend line, but still if you ask me, this is a very minor resistance that it is working with. And what about the small cap? So this is Nifty small cap. I see a double bottom here, right? So this is one bottom, the other bottom, and this is where it is trying to reverse. It is just early signs, but it is also trying to give me some kind of a bullish indication, right? So if I am able to see some kind of a structure which is suggesting a positivity, now what is Nifty? Now let me just remove everything. Yeah. So this is what it is. Let me draw the resistance line first. So this is the resistance line that market is operating right now. What was the lower leg of this structure? I would say you can draw a channel like this. It will look like a channel. But essentially what is most important is this level, right? So यहाँ से if I'm able to see a bullish structure, where is my next level of resistance? So the next level of resistance will only come at the previous support line which was there, which got broken, and इसके बाद में यहाँ पे selling चालू हो गया था. So यहाँ से थोड़ा सा conflicting situation है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ मेरे को यहाँ पे breakout दिख रहा है और दूसरा मेरा resistance भी इसी एरिया पे आने वाला है. So the thick of the activity that happened, जहाँ पे लोगों का majority of the position was stuck previously, is in this box, right? So basically this level is somewhere around 17,000. So मेरे को यहाँ पे एक breakout अगर 16,850 पे मिल रहा है, my next headwind is coming at 17,000. So this is a situation which is
अ बिट डाइसी। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने चाहिए, बट उनको ज्यादा देर तक खुला नहीं रखना चाहिए। इफ दे फायर, इफ दे डोंट कम आउट, है ना, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि ये 17,000 का बैरियर कैसे काम करने वाला है, वेदर दिस ब्रेकआउट इज गोइंग टू सक्सीड। इफ इट सक्सीड्स इट कैन गो अप नाइसली, और अगर वैसा होगा तो आपके स्टॉप लॉस मतलब कभी टच नहीं करेंगे, उनके पास भी नहीं जाएंगे इनफैक्ट, राइट। द स्टॉक्स विल सिंपली फायर। और ये ब्रेकआउट चला तो 17,000 के पास में अगर वो रेजिस्टेंस अगर काम करता है उल्टा तरफ, तो यू विल सी दैट देयर इज अ स्टिकनेस इन योर स्टॉक। जो स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है वो नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सिप्ला का एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो सिप्ला में देयर इज अ वेरी नाइस ब्रेकआउट एंड यू सी द आरएसआई रीडिंग एट दिस ब्रेकआउट पॉइंट वाज 85, बट जैसे कि मैंने कहा कि वी गॉट टू इग्नोर द आरएसआई रीडिंग व्हेन द स्टॉक इज गिविंग अ ब्रेकआउट, राइट। तो यहाँ पे अभी आपका ब्रेकआउट आ रहा है, हो गया ब्रेकआउट। अब ये स्टॉक आपका ब्रेकआउट था वाज एट लाइक कितना 970, नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1050। तो इसमें एक 7-8%, 10% का ऑलमोस्ट एक मूव आ चुका है, राइट। नाउ द आरएसआई रीडिंग इज एट 94, सो दिस इज वेयर इफ आई वाज लॉन्ग आई गॉट टू टेक माय प्रॉफिट्स। डिपेंड करता है, इफ आई वाज like taking a trade based on this consolidation, yes, then this is the point where I would be happy to take my profits, because after this point it is like more risk than reward, because यहाँ पे शायद स्टॉक 50 रुपए ऊपर जा सकता है लेकिन पूरा 100 रुपए नीचे आ सकता है। That is how I'm going to be looking at, right? Now the point is कि अगर इस टाइप के ब्रेकआउट्स सिप्ला में आप और फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं, नहीं, इट इज एन अप ट्रेंड, यस, बट यू कांट टेक अ फ्रेश पोजीशन। तो अगर मैं ये देख रहा हूँ कि भाई यहाँ से ऐसे स्टॉक में जिसमें ब्रेकआउट आ चुके थे, they are also kind of getting into a profit booking mode. The one which gave a breakout are not firing, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला एक एग्जांपल देता हूँ, इप्का लैब्स, मैंने खुद एक ट्रेड दिया था उसमें, राइट। ये वाला एक ब्रेकआउट था यहाँ पे, बट आफ्टर द ब्रेकआउट द स्टॉक सिंपली डिड नथिंग, ये थोड़ा सा एकदम साइडवेज हो गया, और यहाँ पे आज इसने अटेम्प्ट भी लिया ऊपर जाने का, बट समहाउ इट फेल्ड टू डू दैट। द ब्रेकआउट केम इन एट 1000, और इसके बाद में इसने 1040 का कुछ कैश में हाई लगाया था, या 1030 पे ट्रेड हो रहा था सुबह, उसके बाद में फिर ये नीचे आ गया, और ये फिर बाद में जो है ना 1010-15 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। सो एक ब्रेकआउट अगर स्ट्रांग होना तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें फिर ये जो है ना ये सीधा चल जाता है। So this is a situation where I would not be willing to hold the stock any further. I am happy to let go the stock at cost or with minimum profit, or even if it was at a minimum loss. So ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जो है ना आपको ये प्रोबेबिलिटी आपका बहुत मतलब फंसने का जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको बहुत कम कर देता है, बिकॉज नाउ इन दिस सिचुएशन द स्टॉक इज वेरी मच वनरेबल टू एनी नेगेटिविटी। क्योंकि आप यहाँ पे समझ के देखिए कि यहाँ पे ऑल दोस पीपल who have entered with me, they are all holding the positions, and in case if the stock now comes in with a negative news, everybody is going to come and sell, और फिर ये स्टॉक जो है ना एकदम सीधा 900 रुपए ऐसे आ जाए। उसमें हो सकता है कि आपको गैप डाउन हो जाए, आप स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओ। So these are the certain things that we have to keep in mind. So yeah, with this I would want to like conclude today's session, and now I would open the floor for Q&A, and you can ask questions if there are any. So yes, I see a lot of questions coming in. Just 1 minute. Please bear with me. Yeah, so how to find stop loss? Very good question. Actually, what works in general is that I would say अगर आप डेली चार्ट के बेसिस पे कर रहे हैं, जहां पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, मे बी लाइक फॉर 7 days, वेयर यू आर लुकिंग एट एनी गेन बिटवीन से 3%, 5% टू अबाउट 10%, तो वैसे केस में 3% स्टॉप लॉस एज अ थंब रूल विल वर्क। एनीथिंग बिटवीन 4 to 3%। अगर मिड कैप है तो 4% मैक्सिमम आप रख सकते हैं, और अगर इससे बड़ा आपको लगे कि स्टॉप लॉस है तो यू डोंट टेक द ट्रेड एट ऑल। और अगर लार्ज कैप है तो लार्ज कैप में आई थिंक 2 से 3% इज अ वेरी रीजनेबल स्टॉप लॉस, राइट। व्हाट आर द टेक्निकल नीड टू फॉलो इन ट्रेडिंग? तो जैसे बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि आप ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा इसको मास्टर
कर सकते हैं. And along with this you just also try to include RSI and the breadth, the way I explained, like holistically आप हर स्टॉक को देखिए, उससे फिर आपका जो है एक आपको टोटल एक आइडिया लग जाएगा कि how the market is overall panning out. अच्छा, when I exit मेरा जो लॉस है वो प्रॉफिट में आ जाता है. तो ये बहुत कॉमन है कि मैंने पोजीशन काटा, लॉस में काटा, उसके बाद में वो प्रॉफिट में आया. एक्चुअली पॉइंट ये है कि ऐसा होगा और ये हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लॉस, छोटे छोटे लॉसेस अगर हमने इस तरीके से नहीं लिए ना, और अगर हमने ये सोचा कि भाई क्या जरूरत है, हम सारे ट्रेड को पकड़ के रखे तो 90% ट्रेड तो मेरा ऐसे ही प्रॉफिट में कटेगा. बात बिल्कुल सही है. बुल मार्केट में तो खासकर आप कोई भी ट्रेड मत काटो, कोई स्टॉप लॉस मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है. मैं तो बोलता हूं आपका 100 में से 95% ट्रेड जो है प्रॉफिट में कट जाएगा, है ना. बट बात ये है कि वो जो बाकी 5% वाले ट्रेड है ना, जिस दिन बाजार पलटा उस दिन वो स्टॉक जो है ना वो सीधा जीरो हो जाएगा. जैसे कि यस बैंक, जैसे कि DHFL, जैसे कि यू नो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स. तो वैसा अगर आपका एक भी स्टॉक में ऐसा पोजीशन हुआ ना, तो वहां पे आपकी मतलब टोटल कैपिटल गोज फॉर अ टॉस. तो अब वहां पे पूरा पैसा आपका लॉस हो सकता है. तो इसके लिए क्या है कि अपरेंटली अननेसेसरी वो छोटे छोटे लॉसेस मेरे को लेने हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड सच एटम बॉम्ब्स, है ना. तो बाकी और कोई तरीका नहीं है ये बोलने का कि हाँ भाई ये 4% का ही लॉस होगा, ये स्टॉक उसके बाद में घूम जाएगा और ये जो स्टॉक है ये DHFL बन जाएगा. ऐसा आप नहीं बोल सकते हो है ना. सो वो तो बाद में मालूम चलता है, हो जाने के बाद. तो हर उस बड़े एटम बॉम्ब वाले लॉस से बचने का एक ही तरीका है कि आप हर चीज को जो है ना एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, ये जानते हुए भी कि यस आई एम टेकिंग द लॉस डिस्पाइट नोइंग कि दिस स्टॉक माइट रिकवर आल्सो इफ आई वुड हैव हेल्ड. बट तब तो फिर मेरा 90% स्ट्राइक रेट हो जाएगा. बट वैसे 90% स्ट्राइक रेट होने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इफ आई एम नॉट एबल टू दोज 10% लॉसेस विच आर ह्यूमंगस, विच आर सो बिग, जो मेरा पोर्टफोलियो पूरा खराब कर सकता है, तो मेरे को 90% का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए. आई एम हैप्पी विद 70% स्ट्राइक रेट वेयर आई एम एटलीस्ट मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन, जहां पे भी मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे को कभी भी बड़े लॉस नहीं होंगे एंड आई एम देयर इन द गेम, सो आई कैन रिमेन इन द गेम, राइट. Advice for beginners, can you suggest some categories to invest in? देखिए, in general as a category I would say stick with the large caps, they are less volatile, but then आपको trend identification और ये understanding has to be there, otherwise it is actually going to be very difficult for you to understand whether you should exit or whether you should remain with the stock, right? At least using trend lines is what I would suggest everybody to practice and learn, and with practice you will get a good hang of it, and you will be like very comfortable with this, and maybe you can avoid such a situation where you feel that you are like getting trapped into certain bad trades. So you can definitely avoid certain bad trades, right? So how to identify stocks? Same, I would say if you know the trend, you know when to like enter and exit. What are the best time to trade? Like as an intraday trader, well, I would say that the general observation is that it is the initial few hours, like 9:15 or maybe 9:30 to about 11 o'clock, and then there is a dull period, and then after 2:30 also there is a lot of activity that picks up. But I personally don't have any preference for trading intraday. If you are asking like for intraday, I would be watchful throughout the day, throughout the market, and I would be based on the activity that I can see in the market, because there is generally not a hard and fast rule that there would be a dullness in the market at 1:30 every day, right? It is not a hard and fast rule. So it is better that if I am doing it professionally, I better do it professionally. I will be watching the markets throughout the day with same intensity, right? Right, I think I mean I will try to answer. There are so many questions, but I would not be able to take all of these questions, and will be happy to answer you back your individual queries. And of course you can talk to me directly, and
the mobile numbers are there. If you want, you can take down my personal contact number as well. That is 983662332. I will write it down for you. So this is my contact number. If you want, we can always have a chat, and I'll be happy to answer your questions. Right. So with this, I would end this session today. And thank you all for joining in. I hope that it was a fruitful session for all of you. And hope to see you again next time. Thank you. Thank you very much.